all to Beginner's Guide to OOP Object Oriented Programming session on a happy evening. On a side note, guests can't ask questions in the chat, so the only thing that you have right now is to raise your hands. Meanwhile, if you have any question, we'll unmute you further and then you can carry on asking your questions. So basically, this session is headed by none other than our two speakers, Asad Ali Jatoi and Muzammil Nawaz, where they'll open up about everything OOP, that is object-oriented programming. And today, Nimra Jabbar is our host for the event. She's a second-year computer systems engineering student at Mute. She's a debater and a sketcher. Her Instagram account is a living proof, indeed. She's also a core team member as director activist. Hi, Nimra. Welcome. Over to you. Thank you, Fatma. Assalamu alaikum, everyone. Good evening, everyone. On the behalf of DSC New Jamshoro, allow me to extend a warm welcome to you. Welcome to Beginner's Guide to OOP. Guys, no more OOPs in OOP. So, let me introduce our today's session's talented speaker who will help you in learning OOP. Our first speaker is Mr. Asad Ali Jatui. He's a third year software engineering student at New Jamshoro. He loves solving logical problems and debugging the code. He is an enthusiastic Java developer and an instructor. With that, our second respectable speaker is Mr. Muzammil Nawaz. He is also a student of 17 batch software engineering department. Besides studying, he is also working as a freelancer developer on Fiverr, having proficiency in several technologies like Java, Python, Android development, and MySQL. Welcome, speakers. Now the floor is yours. Assalamu alaikum everyone. This is Asad Ali. I will start this workshop very sooner. No time. Okay. So welcome to the Beginner's Guide to Object-Oriented Programming. After this workshop, our main goal is that you people will not face any more OOPs in OOP. So let's start with our intro, which is already done by Nimra. Let's redo it. Muzammil. This is Muzamil Nawaz, as I'm already introduced. So, Asad, you can start the workshop. Thank you. Okay, so let's start. These are the contents that we will be covering today. Start from pointers, followed by structures, and then OOP, in which include object and classes, functions and types, encapsulation, inheritance, polymorphism, and then we will be looking at unary and binary operators, and then in last, file handling in C++. So let me clarify that 2 hours are not enough. So after this workshop, you people have to practice what we are teaching you. And after that, you will be able to have complete command on object-oriented programming. So let's start with pointers. Now, what are pointers? पॉइंटर हमारे पास एक वेरिएबल होता है, जैसे हमारे पास C++ में int डेटा टाइप का वेरिएबल होता है या फ्लोट डेटा टाइप होता है हमारे पास या स्ट्रिंग, वैसे ही एक पॉइंटर हमारे पास वेरिएबल होता है। और पॉइंटर का क्या काम होता है कि पॉइंटर जो होता है वो हमारे मेमोरी एड्रेस को अलोकेट करता है, हमारे मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल, आप एक वेरिएबल बना रहे हैं int x which equals to 10। अब ये जो आपका वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आपने x में स्टोर कराई हुई है, लेकिन इन मेमोरी वो कहीं ना कहीं पे अलोकेट होना है, तो उस एड्रेस को आप पॉइंटर्स के थ्रू स्टोर करते हैं। अब पॉइंटर जो होता है हमारा वो कैसे डिफाइन होता है, वो इस तरह से होता है कुछ। आप पहले कोई ना कोई वेरिएबल बनाएंगे, लाइक मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है स्ट्रिंग फूड इक्वल्स टू पिज़्ज़ा, एंड आफ्टर डेट आई हैव रिटन स्ट्रिंग एस्टेरिक ptr इक्वल्स टू एंड फूड। अब यहाँ पे जो ये फूड है, ये सेम वेरिएबल है जो मैंने ऊपर बनाया हुआ था। नाउ दिस एंड रिप्रेजेंट्स एड्रेस, द एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल फूड, and this is how we define pointers in C++. We write the same data type as our variable and we write asterisk. Now asterisk shows that this particular variable is a pointer, right? Now you might be thinking why we shall use pointers in C++. So the main thing that I am going to tell you via this code, try to understand, this is our C++ code.
we have libraries, directives, and followed by a method, a function. Later on, Muzammil will be telling you the function, what are the functions and all these. Let's just start from here. We have a method sum, int m and int n. Now इस जो मेथड में हम पास कर रहे हैं, ये दो पैरामीटर पास कर रहे हैं m and n, both are integers, right? अब यहाँ पे हम देखें कि मैंने int m में 5 वैल्यू असाइन कर दी और int n में मैंने 6 वैल्यू असाइन कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सम मेथड कॉल करा रहा हूँ जिसमें मैंने मेरे वेरिएबल्स पास किए हैं m and n, यानी कि 5 and 6। अब सम मेथड को हम देखते हैं। सम मेथड बेसिकली कर क्या रहा है, ये m और n को सम करके वापस m में स्टोर करवा रहा है। अब जैसे मैंने ये मेथड कॉल किया तो इसके बाद मुझे आउटपुट क्या आना चाहिए, लाइक यहाँ पे मैंने लिखा है cout m, तो 5 + 6 = 11, तो हमारे पास आउटपुट में 11 आना चाहिए, राइट? बट दिस इज नॉट द केस। C++ विल रिटर्न 5 बिकॉज यहाँ पे जो ये मेथड हमने बनाया था उसमें हमने चेंजेस तो की, लेकिन यहाँ पे वो चेंजेस नहीं हुई, क्योंकि हम क्या करते हैं मेथड में, ये जो वेरिएबल्स हैं ये हम एज अ कॉपी सेंड करते हैं। अब हम कॉपी सेंड करेंगे तो वो टेम्पररी वेरिएबल्स होंगे, वो वहीं पे चेंजेस करेंगे, उनका स्कोप यहाँ तक होगा, इसके बाद इनका स्कोप नहीं होता, ख़त्म हो जाता है स्कोप। तो हम क्या करते हैं, इसी वजह से हम पॉइंटर्स यूज़ करते हैं। पॉइंटर्स क्या करेंगे, अब इन दोनों का जो है एड्रेस वो स्टोर करेंगे। फिर अब अगर जब हम चेंजेस करेंगे एड्रेस में तो उनकी डेटा में चेंजेस परमानेंट हो जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ इस ग्राफ में कि कैसे। लाइक वी हैव अ वेरिएबल int var 10, ठीक। अब इस वेरिएबल को 10 वैल्यू तो मिली, लेकिन इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा मेमोरी में। लाइक दिस वी हैव दिस एड्रेस #2008। अब ये हमारे पास एक कोई ना कोई मेमोरी में अलोकेटेड एड्रेस है। अब हम क्या करें, एक दूसरा वेरिएबल बनाया हमने int *ptr, जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है। अब ये पॉइंट कर रहा है एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल वेर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंटर में जो है मैंने वैल्यू चेंज कर दी, 20 कर दी। अब मैं पॉइंटर की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, तो इनडायरेक्टली ये क्या करेगा, ये उस मेमोरी एड्रेस पे जाएगा और उस पर जो वैल्यू होगी उसको वैल्यू को चेंज कर देगा into 20। तो ये जो है हमारा रेफरेंस पासिंग, ये हमारा इजी हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। वैसे ये नहीं होता C++ में। मेथड में आप वैल्यू पास करेंगे लाइक दिस और फिर उसका रिजल्ट वही आएगा जो आपका पहले था, मतलब नो चेंजेस विल बी देयर। सो पॉइंटर्स हमारा जो है इस इशू को ओवरकम करता है। लेट्स सी पॉइंटर्स वाला एग्जांपल। We have a preprocessor directives library and we are using this function sum int *m। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंटर पास कर रहा हूँ, ये एक पॉइंटर, ये दूसरा पॉइंटर, मैंने दो पॉइंटर्स पास किए और मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंटर m में सेव कर रहा हूँ पॉइंटर m प्लस पॉइंटर n की वैल्यूज़। अब यहाँ पे ये जो है वैल्यूज़ ऐड होंगी, क्योंकि अगर हमें एड्रेस चाहिए तो हम एंड यूज़ करते हैं, स्टार रिप्रेजेंट्स द पॉइंटर्स। अब मेन मेथड में मैंने क्या किया है, m को वैल्यू दे दी 5, n को 6, जैसे हमने पहले की थी। अब मैंने पॉइंटर बना दिया पॉइंटर m, मतलब पॉइंटर ऑफ m इज इक्वल्स टू एंड m, मतलब m वेरिएबल का जो एड्रेस था हमारे पास वो इस पॉइंटर वेरिएबल में आ चुका है। अब ऐसे ही जो हमारे पास सेकंड पॉइंटर है n, अब n जो वेरिएबल है हमारा, उसका जो एड्रेस है वो इस पॉइंटर में आ चुका है। और मैंने ये मेथड कॉल कराया है, ये फंक्शन कॉल किया है, इसमें मैंने पास कर दिए pm और pn जो हमारे पॉइंटर्स थे। अब इनके बाद मैं वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ m की, तो वी कैन सी 5 + 6, आउटपुट में हमें 11 आ रहा है, जो कि सही आउटपुट है। ये वाकई में इसकी वैल्यू चेंज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम m में स्टोर करवा रहे हैं, तो ये m की वैल्यू वाकई में ओवरराइड हो रही है और ये चेंजेस आकर हो रही हैं। तो पॉइंटर्स का C++ में बड़े से बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि ये पास बाय रेफरेंस मेथड्स में काम आता है। पास बाय रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप एड्रेस पास करें एज अ पॉइंटर्स पास करें और आपकी जो है वैल्यू वो वॉलेटाइल ना रहे, आपकी चेंजेस परमानेंट हों, इसलिए हम यूज़ करते हैं पॉइंटर्स। अब पॉइंटर्स के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर्स का। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। मतलब फॉर से कि आपको कुछ एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसमें आप का स्ट्रिंग भी सेव हो, उसकी इंटीजर वैल्यू भी सेव हो और कुछ ना कुछ फ्लोटिंग वैल्यू भी सेव हो, मतलब 3 चीज़ें आप सेव करवाना चाह रहे हैं। तो ये जो है डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर में वो चीज़ें आप डालेंगे तो बाद में उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर्स इन C++ आर डिफाइंड इन दिस मेथड। वी राइट स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद हम नाम लिखेंगे उस स्ट्रक्चर का, ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसमें जितने भी हमें मेथड वेरिएबल्स लगाने हैं, डेटा टाइप्स ऐड करने हैं, मेंबर्स ऐड करने हैं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैरेक्टर का एरे है और फिर नीचे इंट id एरे है, फिर फ्लोट सैलरी
और इसके लास्ट में हम जब ब्रैकेट की क्लोज करेंगे तो हम सेमीकोलन लगाएंगे। ये होता है स्ट्रक्चर इन C++। अब स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है एम्प्लॉय के नाम से। अब एम्प्लॉय हम देखा जाए कि एम्प्लॉय की कोई एक जो है एट्रीब्यूट नहीं होता। एम्प्लॉय का नाम होता है, एम्प्लॉय की आईडी होती है, एम्प्लॉय की सैलरी होती है, ये सारी चीज़ें जो है मैनेज करनी होती हैं। तो बजाय हम सबको अलग अलग मैनेज करें, हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर हमने बना लिया और उसमें मैंने यहाँ पे लिखा है वेरिएबल इंट आईडी। अब ये जो है ये इसका एक एट्रीब्यूट है और उसके बाद मैंने लिखा है फ्लोट सैलरी। अब ये 2 एट्रीब्यूट्स हैं इस एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के। ये आगे जाके यूज़ होंगे और बहुत ही आसान तरीके से यूज़ होंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंट मैन। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय P1 एक वेरिएबल बनाया, जैसे हम इंटीजर का कैसे वेरिएबल बनाते हैं, इंट आईडी। तो वैसे ही एक स्ट्रक्चर का अगर हमें वेरिएबल बनाना होगा तो हम स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे एम्प्लॉय, उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे और यहाँ पे हम एंड भी कर सकते हैं सेमीकोलन लगा के। फिर उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो उसको बाद में असाइन करना पड़ेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, लिखा है इक्वल ब्रैकेट 45, 10.5। अब ये जो 45 और 10.5 है ये इसके पैरामीटर, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। लाइक पहला जो हमारा एट्रीब्यूट है वो है आईडी विच इज़ 45, उसके बाद है हमारा सैलरी विच इज़ 10.5। तो ये खुद ही जो है इसको समझ जाएगा कंपाइलर कि ये जो वैल्यूज़ मुझे पास हो रही हैं ये फर्स्ट ऑर्डर में है। मतलब पहली जो वैल्यू है वो मुझे आईडी में सेव करनी है और जो दूसरी वैल्यू है वो मुझे सैलरी में सेव करनी है। अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ सी आउट आईडी कॉलन और यहाँ पे मैंने लिखा P1.id। अब ये जो डॉट ऑपरेटर है, इस डॉट को हम कहते हैं डॉट ऑपरेटर। ये डॉट ऑपरेटर यूज़ होता है किसी भी स्ट्रक्चर या क्लास की कोई चीज़ को एक्सेस करने में। यहाँ पे ये जो 2 चीज़ें आप देख रहे हैं वेरिएबल, ये डेटा मेंबर्स हैं इस एम्प्लॉई स्ट्रक्चर के। तो इसको अगर एक्सेस करना होगा तो हम लिखेंगे एम्प्लॉई वाला जो वेरिएबल हमने बनाया है उसका नाम डॉट। अब जैसे आप डॉट टाइप करोगे तो आपके पास वहाँ पे सजेशन में आ जाएगा कि क्या आप एक्सेस करवाना चाह रहे हैं। मुझे आईडी चाहिए यहाँ पे, तो मैंने लिखा डॉट आईडी और न्यू लाइन। अब हम दूसरी लाइन पे आए, सी आउट सैलरी। अब मैं सैलरी को एक्सेस कर रहा हूँ डॉट ऑपरेटर से, तो मेरा आउटपुट ये आ गया आईडी कॉलन 45 सैलरी कॉलन 10.5। मतलब यहाँ पे जो हमने वैल्यू दी थी वो इसको असाइन हो गई सक्सेसफुली। सो स्ट्रक्चर इसलिए यूज़ होते हैं जब हमारे पास जो है यूज़र डिफाइंड टाइप्स हमें बनाने हों। अब ओवर टू यू मुजम्मिल। थैंक यू असद। सो गाइस, आप सबने पहले से C++ पढ़ी हुई है आई एज्यूम। तो बेसिकली यू ऑल नो कि हमारे पास एक लैंग्वेज में, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट थिंग्स होती हैं, जो कि असद ने पहले भी आपको बताई कि उसमें फंक्शंस होते हैं, या हमारे पास C++ में स्ट्रक्ट की जो कैटेगरी है वो भी है, जिसमें हम यानी कि डिफरेंट डेटा टाइप्स की चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट ऑपरेशंस और हमारी जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो भी हम कर सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं और अपना जो काम है वो उससे निकाल सकते हैं। तो पहले ये देखा जाए कि ऊप जो है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारी मेथडोलॉजी है, जिसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, तो पहले हमें इस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहले तो ये देखें कि वो क्या है। तो ऊप बेसिकली आपका यानी कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि ये प्रपोज करता है कि जो भी आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आपके कोड में जो भी चीज़ है जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिस पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपकी एक ऑब्जेक्ट है। तो बाय ऑब्जेक्ट इट मीन्स कि उसकी एक रियल टाइम एग्जिस्टेंस है, या वो चीज़ जो है वो किसी एक डिज़ाइन की यानी कि सो बेसिकली ऊप जो है वो आपका यही कहना चाह रहा है कि आपके जो भी आप प्रोग्रामिंग में अपनी कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी वेरिएबल्स में, किसी भी चीज़ों पे जिस पे आप रियल टाइम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई ये मेरी इस प्रॉब्लम में इस चीज़ को मैंने ये इसके मेंबर्स बनाए हैं, इसमें ये मैंने एट्रीब्यूट्स बनाए हैं, तो वो आपकी चीज़ बेसिकली एक ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है। तो ये देखा जाए कि अब ऊप की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत ऐसे पड़ी कि देखें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो बनाई गई थी वो रियल टाइम जो डिजिटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि बड़े बड़े स्केल्स पे होती हैं, हमने उनको सॉल्व करने के लिए जो है साइंटिस्ट ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई जिससे हम रियल टाइम बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो अगर हम रियल टाइम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, तो एफिशिएंट वे उसका ये होगा कि हम उसमें अप्रोच जो यूज़ करें सोल्यूशन की, वो ये करें जो कि हमारे रियल टाइम में भी यूज़ होती हो। तो जनरली जैसे कि हमारे रियल टाइम में किसी भी चीज़ की जो है ऐसे ही एग्जिस्टेंस नहीं होती। वो बेसिकली वो पहले से उसका बेस जो है कहीं न कहीं पे होता है और वो कहीं न कहीं से बनी हुई होती है, या उसके हर चीज़ के अपने-अपने एट्रिब्यूट्स होते हैं। तो ये अप्रोच जो है ये यूज़ करके हमारे ऊप में जो है मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स भी दिलवाए गए। तो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया, ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट मीन्स इट हैव ए बेस।
and it have a real time existence. So this is not just a entity which you can जैसे कि हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जो कि इनका कोई बेस नहीं होता, ये सिर्फ एक जनरल वैल्यूज होती हैं और सिर्फ हम डेटा टाइप जो है उस उन वैल्यूज के टाइप होते हैं, बाकी उनके जो रियल टाइम एग्जिस्टेंस कहें वो उस टाइप की नहीं होती जो कि एक ऑब्जेक्ट की होती है जो कि किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ऐसे ही तो ऊप में जो हमारे पास चीज़ें आती हैं मुख्तलिफ डिफरेंट मेथडोलॉजीज, डिफरेंट थिंग्स जो आती हैं वो होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल विच आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो पहले ये जान लें कि क्लास क्या है। तो अगर हम रियल टाइम एग्जांपल्स या रियल टाइम प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो देखें रियल टाइम में ऐसे होता है कि हमारे पास कोई भी चीज़ बनाने से पहले हम उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसकी डिज़ाइन बनाते हैं कि हमारे पास जो ये चीज़ जो एग्जिस्ट करेगी इन द फ्यूचर उसमें ये एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, वो ऐसे काम करनी चाहिए और उसमें उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो इस हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम अपने प्रोग्रामिंग में, अपने C++ में, अपने अगर किसी भी बड़े प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करना चाह रहे हैं और उसमें हमारे पास डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम उसको डिज़ाइन करते हैं कि भाई हमारे पास ये डिफरेंट एंटिटीज़ होंगी जिन पे हम काम करेंगे। तो आपकी क्लास क्या हो गई, क्लास यानी कि उसके पास अपने उसके मेंबर्स होते हैं, उसके अपनी डिज़ाइन होती है कि भाई इस क्लास है, इस क्लास में हमारे पास इस टाइप की चीज़ें होंगी, ये ऐसे ऐसे फंक्शन करेगी, ये हमें ये फंक्शनैलिटी जो है वो फराहम करेगी या हम इससे ये काम ले सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। Why classes are important? Because classes are important because they defines the nature of any object or anything which is going to be existing in the future. We just already know beforehand that what it will be consistent of or what function it will be performing in our program or in our whole project. So what are these things which are going to be which are going to exist in future? These are called objects. like as I said earlier that any class, जो एक क्लास होती है वो जस्ट आपका एक ब्लूप्रिंट होती है या डिज़ाइन होती है जिसमें हम ये सिर्फ बयान करते हैं डिफरेंट एट्रीब्यूट से, डिफरेंट मेथड से कि ये अगर कल को हमारे प्रोग्राम में यूज़ हुई तो इसके पास ये फंक्शनैलिटीज़, ये मेंबर्स इस डेटा टाइप के इस तरह की फंक्शनैलिटीज़ ये यूज़ करेंगी, लेकिन उसका कोई अभी तक एग्जिस्टेंस नहीं होता। लेकिन जब हम अपने किसी प्रोजेक्ट में उस क्लास का सही से यूज़ करते हैं या उसको हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे होते हैं तो हमें उसको यूज़ करने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसका जो है एक मेमोरी में एक स्टोरेज भी हो जाता है और उस ऑब्जेक्ट में जो है उस क्लास की सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी जो कि हमने पहले से ही उसमें डिज़ाइन की हुई थी और उसमें बयान की हुई थी कि भाई इस क्लास में ये चीज़ें आ जाएंगी, तो उस ऑब्जेक्ट में वो सारी प्रॉपर्टीज़, वो सारे फीचर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो to be specific, object is an instance of class or an real time existence of class. क्लास जो थी आपकी उसकी टाइम में कोई मेमोरी नहीं थी, कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं थी, वो जस्ट एक ब्लूप्रिंट और डिज़ाइन थी। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमने जैसे ही किसी क्लास को उसका ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके पास जो है उसके सारे एट्रीब्यूट, सारे प्रॉपर्टीज आ गई और उसकी रियल टाइम पे एक अलग से एग्जिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, तो C++ अगर हम कह रहे हैं कि भाई C++ इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो इस चीज़ से ये मुराद है कि भाई C++ और एवरीथिंग इन C++ which we use is associated with classes and objects. So it means that there are several classes which are going to be used for several purposes, and for using them we will be using their objects or by creating their objects. So एक क्लास के पास बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं, क्लास के पास आपके सिंपल से समझें कि मेंबर्स होते हैं, जिसके मेंबर्स दो टाइप्स के होते हैं। एक आपके क्लास में वेरिएबल्स हो गए और दूसरे आपके जो है उसमें कुछ फंक्शंस हो गए, कुछ फीचर्स हो गए जो कि हम उसमें ऐड करते हैं कि भाई ये क्लास जो है ये इस हवाले से परफॉर्म करेगी। सो दिस वाज अ बेसिक इंट्रो टू द ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। Asad, can you please move forward in the slides? Hello, Asad. It's Okay. next. Yeah. So here's a thing which I already defined, that a class in C++ is a user-defined type, a data structure declared with keyword class. So एक क्लास जो हमने जिसको डिजाइन कहा या जिसको ब्लूप्रिंट कहा, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं एक C++ में, with the word which is with a word called class. Like हमने अगर लिखा कि क्लास एनिमल, तो it will be understood by C++ as a class which has a name of animal. ठीक है, तो उसके बाद it will have data and functions as its members whose access is governed by the three access specifier: private, protected and public. तो बेसिकली देखें आपकी कोई भी क्लास है जो कि आपके
उसमें आपके प्रोग्रामिंग में आपके प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही है, तो उसके पास अपनी कुछ लिमिट्स होती हैं कि भाई उसका जो रेंज है, उसका जो स्कोप है, उसका जो यूजेज है, वो किस हद तक होना चाहिए और किस हद तक नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे हमारे पास कुछ स्पेसिफायर्स होते हैं जो कि उस क्लास का एक्सेस जो है उसको लिमिट करते हैं। अगर यानी कि हमारे पास वो पब्लिक है, तो उसका मकसद ये है कि उस क्लास को हमारे पास हमारी लैंग्वेज में या हमारे उस सारे प्रोजेक्ट में कोई भी एंटिटी या कोई भी चीज़ जो है उस क्लास का यूज़ कर सकती है। और अगर प्रोटेक्टेड है, तो उसका मकसद है कि हमारे जो पैकेजेस होते हैं, पैकेजेस में से ये मुराद है कि आपका एक पैकेजेस में सेवरल क्लासेस आ जाती हैं, और वो क्लासेस आपके एक एक दूसरे से रिलेटेड क्लासेस भी हो सकती हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ हो रही हों, या जैसे कि आपके प्रोजेक्ट की अगर फ्रंट एंड की डिज़ाइनिंग हो गई, अगर उस डिज़ाइन को कुछ क्लासेस यूज़ कर रही हैं, तो हम या कुछ क्लासेस जो हैं वो डिफाइन कर रही हैं, तो हम डिज़ाइनिंग की क्लास का एक अलग से पैकेज बना के सारी डिज़ाइनिंग की क्लास उसे एक पैकेज में रखते हैं। ऐसे ही अगर हमारा बैकएंड का अगर कोड है, तो वो हम अलग पैकेज में रखते हैं। तो बेसिकली आपका पैकेजेस का काम जो होता है, वो रिलेटेड क्लासेस को जो है वो साथ में रखना होता है। और ऐसे ही प्रोटेक्टेड जो आपका किसी क्लास के ऊपर अगर हमने लगा दिया एक्सेस स्पेसिफायर, तो उसका मतलब ये होगा कि वो हमारी सिर्फ उस जो करंट उस क्लास का पैकेज है, उस पैकेज की जो दूसरी क्लासेस है, सिर्फ वही क्लासेस हमारी करंट क्लास को एक्सेस कर सकती हैं, उसके अलावा बकाया नहीं कर सकती। और ऐसे ही हमारा प्राइवेट जो है, प्राइवेट का मकसद है कि वो क्लास जो है सिर्फ उसके मेंबर्स को, सिर्फ उसके वेरिएबल्स को उस क्लास का अपना ऑब्जेक्ट ही कॉल कर सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं कॉल कर सकता। सो बेसिकली लास्ट में वही चीज़ लिखी हुई है जो कि मैंने पहले भी बताई, दैट क्लास इज अ ब्लूप्रिंट एंड ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकली प्रेजेंट इन अ मेमोरी। तो क्लास हमारे पास सिर्फ एक ब्लूप्रिंट था, सिर्फ एक डिज़ाइन थी, और ऑब्जेक्ट जो है उस डिज़ाइन का जो है रियल टाइम एग्जिस्टेंस है। सो या दिस इज just a fun story of any object-oriented programming, that everything in that thing is referred as object. Like everything around you in that language is an object. So please move ahead, Asad. Yeah. So there is a basic example with a code of a simple class which is named as my class. Just पहले हमारा जो है वही सेम कोड है जो कि हमारे किसी भी नॉर्मल C++ प्रोग्राम में होता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने एक क्लास को, जिसको हम माई क्लास कह रहे हैं, उसको हमने कैसे स्पेसिफाई किया। पहले हमने यूज़ किया क्लास माई क्लास कीवर्ड, जो कि C++ को ये बता रहा था कि भाई हम माई क्लास नाम की एक क्लास जो है, या एक डिज़ाइन जो है, या एक ब्लूप्रिंट जो है, जो कि हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, आगे जो है बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उससे हमारी C++ ये अंडरस्टूड कर गई कि भाई ठीक है, आगे जो कोड है वो इस क्लास के क्लास से रिलेटेड है या क्लास का पार्ट है। तो क्लास का जो स्कोप है वो हमारी ब्रैकेट से वो शो हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद अंदर उसके बाद आप पढ़ सकते हैं कि जैसे पब्लिक लिखा हुआ है, उसके पब्लिक में कॉलन के बाद दो वेरिएबल्स जो हैं, एक इंटीजर टाइप का माय नेम और एक इंटीजर टाइप का जो है स्ट्रिंग माय स्ट्रिंग हमने डिफाइन किए हुए। तो पब्लिक यहाँ पे क्या काम कर रहा है कि भाई ये जो आपके वेरिएबल्स हैं क्लास के, ये आपके इन वेरिएबल्स को, इन मेंबर्स को कोई भी जो है एंटिटी यूज़ कर सकती है। सिंपल, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि किसी भी क्लास में जो है उसके एंटिटीज़ या उसके जो मेंबर्स होते हैं उनमें कुछ स्पेसिफायर्स होते हैं जो कि ये हमें बताते हैं कि उन वेरिएबल्स का स्कोप जो है, उनका यूजेज जो है किस लिमिट तक, किस हद तक हो सकता है, जो है नहीं हो सकता। तो जैसे कि हमने कहा कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है, तो यहाँ पे हमने क्लास का एक स्ट्रक्चर बना दिया कि भाई ये हमारी माई क्लास एक क्लास होगी, जिसमें हमारे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा जिसको हमने माई नम का नाम दिया, और एक स्ट्रिंग टाइप का नंबर वेरिएबल होगा जिसको हमने माई स्ट्रिंग का नाम दिया। और यहाँ पे जो दूसरी कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ पे हमारे क्लास का जो स्कोप है वो वहाँ पे ख़त्म हो रहा है। उसके बाद जो है हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, जो कि किसी भी सी प्लस प्रोग्राम का मेन गेटवे होता है। तो उसमें हमने पहले क्या किया, हमने अपने जो ऊपर हमने क्लास डिफाइन की थी माई क्लास, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको हमने नाम दिया ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट देखें कैसे बनाते हैं, आप पहले क्लास का नाम लिखेंगे जो कि आपने क्लास बनाई हुई है, उसके बाद एक जनरल वेरिएबल का या जनरल ऑब्जेक्ट का नाम देंगे जो कि रेफर करेगा उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को। अब जैसे कि मैंने कहा कि देखें, क्लास आपके पास जस्ट एक डिज़ाइन थी, लेकिन जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो उसमें उस ऑब्जेक्ट में उस डिज़ाइन की, उस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़, सारे फीचर, सारे मेथड जो हैं उसको ऑटोमेटिकली C++ आपकी अलॉट कर देगी। तो हालांकि उस ऑब्जेक्ट में हमने कोई ऐसी चीज़ अलग से नहीं लिखी, सिर्फ हमने क्या किया, माई क्लास ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑटोमेटिकली उसके पास जो है ऑब्जेक्ट का माई नम, उस क्लास का माई नम और माई स्ट्रिंग उस ऑब्जेक्ट को अलॉट हो गया। तो आगे हम क्या करें, उसी ऑब्जेक्ट जो वेरिएबल्स हो उनको हम कैसे एक्सेस करते हैं, विद डॉट ऑपरेटर।
अगर आप ऑब्जेक्ट जो है जो कि आपने किसी क्लास का बनाया है और उसके बाद डॉट यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है लिस्ट आ जाएगी उन एक्सेस की, उन वेरिएबल्स की जो कि आपने आपकी क्लास में से आपको अलॉट हुए हैं या आपको जो कि आपके पास एक्सेसिबल हैं। तो ऑब्जेक्ट डॉट माई नम इज इक्वल टू आई थिंक 73 या सो किसी भी उस ऑब्जेक्ट का जो हमने माई नम जो वेरिएबल था उसको हमने 73 की वैल्यू अलॉट की क्योंकि वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल था। ऐसे ही हमने ऑब्जेक्ट और माई स्ट्रिंग को जो है मुजम्मिल की वैल्यू अलॉट की क्योंकि वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल था। तो उसके बाद जो है हमने जस्ट उस ऑब्जेक्ट की जो डेटा है उसको प्रिंट करा दी विच इज़ ऑब्जेक्ट डॉट माई स्ट्रिंग सी आउट में लिख के एंड देन ऑब्जेक्ट डॉट माई नम। So this was that easy to use any class and its objects. This is just output of that code which we just studied earlier. तो देखें कि पहले हमने ऑब्जेक्ट और माई स्ट्रिंग जो सी आउट कराया तो उसमें जो वैल्यू थी जो कि मुजम्मिल थी उसने वो प्रिंट कर दी और उसके बाद जो है कॉमा देकर उसके बाद उसने ऑब्जेक्ट और माई नम यानी कि उसका नंबर जो था 73 उसको प्रिंट कर दिया। So this was just a simple example of how we use class and objects in our object-oriented programming. So Asad, can you please? Okay. So जैसे कि हमने पढ़ा कि एक क्लास में हमारे पास मेंबर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के और बेसिकली वो मेंबर्स जो हैं वो या तो आपके वेरिएबल्स होते हैं या तो आपके फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शन में भी आपको पता हो लेकिन मैं फिर भी अगर बताना चाहें तो फंक्शन जो है एक सिंपल बंच ऑफ कोड होता है या ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि हम बनाते हैं और उसको एक नाम देते हैं कि भाई ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड है ये किसी एक हमारे स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमने बनाया है। ये उस सारे उसमें जो भी अंदर कोड होता है जो भी अंदर उसमें प्रोग्रामिंग होती है वो सारी रिवॉल्व करती है एक पर्टिकुलर ऑपरेशन पे, पर्टिकुलर प्रोसेस पे। तो हमने क्या किया कि एक ब्लॉक ऑफ कोड बनाया, उसे अगर नाम दे दिया, उसे एक रिटर्न टाइप दे दिया और जो स्मॉल ब्रैकेट्स जो हैं वो हमारी फंक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर हम कोई भी फंक्शन बना रहे हैं तो उसका सिंटैक्स ये है कि हम पहले उसका रिटर्न टाइप लिखेंगे और ये याद रखें कि एवरी फंक्शन मस्ट हैव ए रिटर्न टाइप। या तो अगर वो फंक्शन वैसे भी कोई वैल्यू रिटर्न जो है जनरली रिटर्न टाइप दे देंगे किसी भी डेटा टाइप का और अगर वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो हमें हमें उसे वॉइड का रिटर्न टाइप देना है जिसका मतलब ये है कि ये आपका फंक्शन जो है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, ये जस्ट अपना जो उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा और वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे ही फंक्शन आपके पास सी प्लस प्लस में कुछ बाय डिफ़ॉल्ट भी होते हैं जिसके जैसे कि आपने मैन फंक्शन तो वैसे भी यूज़ किया होगा, तो ये आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है विच इज़ इन द सी प्लस प्लस एंड विच हैज़ इट्स ओन फंक्शनैलिटी। तो बेसिकली मेन फंक्शन का काम क्या होता है कि जैसे ही आपका सी प्लस का प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है तो डायरेक्टली मेन फंक्शन में आएगा। तो ये इसको एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी अलॉट की गई है जो उस पर काम कर रहा है। ऐसे हम अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी कर सकते हैं जो कि हमने ऊपर किया हुआ है विद द नेम माई फंक्शन। और देखें उसका जैसे कि मैंने बताया कि उसका डिफाइन करने का एक वे होता है कि पहले हमने उसे डेटा टाइप दी वॉइड, यानी कि इसका मतलब है कि ये हमारे पास कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा और उसके बाद हमने उसे अपना नाम दे दिया विच इज़ माई फंक्शन। और उसके बाद जो स्मॉल ब्रशेज हैं जो कि ये बता रही हैं हमें कि ये जो हमने चीज़ लिखी है, ये जो हमने प्रोग्राम की है, ये जो डिफाइन की है माई फंक्शन के नाम से, दिस इज़ बेसिकली अ मेथड और अ फंक्शन ऑफ दिस क्लास और ऑफ दिस प्रोग्राम। और उसके बाद एक कर्ली ब्रेस के बाद हमने जो है उसकी बॉडी या उसका जो एक्चुअल कोड है जो कि हम उससे फंक्शनलिटी परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं वो लिख दिया। और नीचे हमने क्या किया और देखें मेन चीज़ फंक्शन की ये होती है कि ये आपका ब्लॉक ऑफ कोड तो होता है लेकिन ये रन टाइम पे तब तक कॉल नहीं होता जब तक कि आप उसको इन्वोक ना कराएं। तो इन्वोक से मकसद क्या है कि जो आपके फंक्शन का नाम था आपने वो मेन फंक्शन में अगर लिख दिया तो ऑटोमेटिकली जो है वो उस फंक्शन को कॉल करेगा और उसका जो ब्लॉक ऑफ कोड था जो उसके अंदर जो उसकी कर्ली ब्रेसेस में उसके बॉडी में जो कोड पड़ा हुआ था वो उसको उसके बाद एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे हमने मेन फंक्शन में यही किया जो हमने ऊपर माई फंक्शन बनाया था जिसमें हमने प्रिंट कराया कि लर्न फ्रॉम लर्न। तो जस्ट हमने मेन में आके उसको माई फंक्शन को कॉल कराया उसका नाम लिख के और कर्ली ब्रेसेस के साथ एंड देन रिटर्न 0 कर दिया और उसके बाद उसने हमें आउटपुट रिटर्न किया जो कि हमने अपने फंक्शन में प्रिंट करवाया था विच इज़ लर्न फ्रॉम लर्न। So this was just easy to how to define a function and how to call it. Then there are different types of functions. So देखें कि पहले पिछला जो हमने फंक्शन देखा वो कोई भी डेटा हमसे ले नहीं रहा था, उसमें जस्ट एक पंच ऑफ कोड था जो कि पर्टिकुलर कोई भी प्रिंटिंग कर रहा था, कोई भी डेटा कोई भी मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपके फंक्शन डिफरेंट टाइप्स के रिटर्न टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास फंक्शन जो है अपने
जो स्मॉल ब्रेसेस जो होती हैं जिसके वो हम फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, उनके बीच में हम कुछ वेरिएबल टाइप के हम आर्गुमेंट भी ले सकते हैं जिसको हम पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर से मुराद के जब आपका फंक्शन वो कॉल होगा कहीं पर भी आपके मेन फंक्शन में या कहीं और जगह पर, तो आपके पास ये वैल्यूज जो है वो आपको कॉल करने वाले के थ्रू पास होंगी, और उसके बाद आपको अगर उन वैल्यूज पे कुछ ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करने हैं, उसके बाद अगर कोई चीज़ रिटर्न भी करनी है तो यहाँ पे इंट टाइप जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो फंक्शन है विच इज़ इंट सब्ट्रैक्ट, और ये हमारे पास एक्सेप्ट कर रहा है दो पैरामीटर्स, वो चार इंटीजर ए एंड इंटीजर बी। और उसके बाद अंदर हमारा जो फंक्शन की बॉडी है जो कि उसकी जो उसका एक्चुअल कोड है वो क्या कर रहा है, रिटर्न ए माइनस बी। तो इस फंक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि ये फंक्शन जो है हमारी दो टाइप की वैल्यूज, दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करेगा जो कि दोनों इंटीजर्स होगी, और उसको हमने एक को नाम दे दिया ए का, एक को नाम दे दिया बी का, और उसके बाद अंदर जो है हमारा रिटर्न ए माइनस बी कर रहा है, तो वो दोनों का जो है सब्ट्रैक्शन और जो दोनों का डिफरेंस है वो हमारा रिटर्न करेगा, यानी कि। और इसके देखें ये इंट वैल्यू अगर रिटर्न कर रहा है तो हमने इसकी डेफिनेशन में भी पहले वॉइड की जगह पे इंट दे दिया, क्योंकि पहले हमने वॉइड पढ़ा हुआ था, यहाँ पे इंट भी आ सकता है और यहाँ पे दूसरे डिफरेंट टाइप्स भी आ सकते हैं, वो चार स्ट्रिंग, चार आर फ्लोट और एनी इंटीजर्स आल्सो। सो सेम ही तरीके से हमने यहाँ पे मेन फंक्शन में जो है अपनी जो रिटर्न वैल्यू थी जो कि हमारा फंक्शन जो है रिटर्न कर रहा था, उसको हमने एक इंटीजर वैल्यू में, एक इंटीजर वेरिएबल में जो है सेव करा दिया, और उसके बाद उसे हमने प्रिंट करा दिया। यहाँ पे जो हमने सब्ट्रैक्ट के फंक्शन में, मेन फंक्शन में जो हमने 5 और 2 पास कराया, बेसिकली हमारे सब्ट्रैक्ट फंक्शन ने क्या किया, उसने 5 माइनस 2 का ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें जो रिजल्ट था वो हमारा रिटर्न कराया, जो कि हमने अपने रिटर्न वैल्यू में सिंपली सेव करा दिया और उसको आउटपुट करा दिया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 का रिजल्ट। ऐसे ही जैसे हमने पीछे इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न कराई, हमारे यहाँ पे राइट साइड वाले फंक्शन पे जो है वो डिविजिबल फंक्शन जो है वो बूलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये अंदर अपना एक कंडीशन है जो कि चेक करके उस हिसाब से आपको बूलियन टाइप की जो दो वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स, वो उनमें से कोई भी आपको कहीं पर भी अपने हिसाब से रिटर्न कर सकता है, जो कि हमने ये डिफाइन की हुई है कि इफ ए रिमाइंडर बी इक्वल टू 0 देन रिटर्न ट्रू, इफ नॉट देन रिटर्न फॉल्स। एंड द मेन थिंग टू नोटिस इज दैट जब आपकी रिटर्न स्टेटमेंट आपके फंक्शन में कॉल होती है तो उसके बाद जो आपके फंक्शन की जो बॉडी है वो आगे कॉल नहीं होती, या आगे जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती, क्योंकि उसका जो कॉलिंग का जो एक्सेस था वो वापस चला जाता है उस चीज़ के बाद जहाँ से वो फंक्शन कॉल हुआ था, और वहाँ से वो जो बॉडी होती है वहाँ से आगे एग्जीक्यूशन शुरू होती है, लेकिन उस फंक्शन की जो एग्जीक्यूशन है वो रिटर्न स्टेटमेंट पे ही ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसे ही हमने फंक्शन जो है 4, 2 पास करा के उसको डायरेक्टली सी आउट करा दिया है। डिविजिबल हमारा क्या कर रहा था, यहाँ पे हमारे रिजल्ट जो है वो फराहम कर रहा था, और वो हमारी यहाँ पे सी आउट में भी आ रही है। असद कैन यू प्लीज? ओके, सो पहले भी असद ने आपको पढ़ाया पॉइंटर्स में कि क्या उसमें हमारे पास बाय रेफरेंस होते हैं फंक्शंस में, और पास बाय वैल्यू क्या होते हैं। तो सिंपली देखें, पास बाय रेफरेंस में ऐसा होता है कि पीछे हमने अगर जो भी हमारे एग्जांपल देखे उसमें हमने क्या किया कि हमारे फंक्शन जो है वो कोई भी एक वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उस वैल्यू में वो अंदर जाके क्या चेंजेस कर रहे हैं उसमें उसका हमारी रियल वैल्यूज पे, या जो हमारी रियल जो हमने डेटा जो पास की थी उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा तब तक के हमने वो वैल्यू जो है वो रिटर्न ना कराई हो। ठीक है, जो रिटर्न वैल्यू हो रही है तो उसका तो वैसे भी हमारे पास न्यू एग्जिस्टेंस हो रहा है, लेकिन जो हमने ऑब्जेक्ट्स अगर यहाँ कोई वेरिएबल अगर हम पास कराते तो उसका वहाँ पर अगर फंक्शन में उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता तो उसका हमारे ओरिजिनल जो वैल्यूज थे जो कि हमारे मेन फंक्शन में पड़े हुए थे उन पर कोई असर ना होता। लेकिन पास बाय रेफरेंस में हम क्या करते हैं, अपने फंक्शंस में जो है रेदर देन डिफाइनिंग जस्ट सिंपल पैरामीटर्स विद सिंपल डेटा टाइप्स वी यूज पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स अगर किसी फंक्शन की डेफिनेशन में पैरामीटर्स की जगह पे यूज हुए पड़े हों तो उसका मतलब हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू या जो भी वेरिएबल्स जो हैं वो एज ए पैरामीटर पास होंगे उनका जो है टोटल एड्रेस जो है वो हमारा उन पैरामीटर्स में आ जाएगा जो कि हमने फंक्शन में डिफाइन किए हुए हैं। तो अगर हम उस फंक्शन की बॉडी में, उस फंक्शन की एग्जीक्यूशन में, उस फंक्शन के अपने कोड में अगर उन वेरिएबल्स में कोई भी चेंजिंग्स करते हैं वो डायरेक्टली वो चेंजिंग्स या वो मॉडिफिकेशन जो हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट करेंगी किसको, ऑन द एड्रेस और ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू व्हिच वाज पास्ड इनटू द फंक्शन। अगर आप आगे देखें तो आई थिंक देयर मस्ट बी एनी, या देयर इज एग्जांपल। सो यू कैन सी कि माय फंक्शन जो है वो आपके पास एक पैरामीटर एक्स जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने जनरल सिंपल जो है डाटा वो हमने एक्सेप्ट नहीं करवाई। यहाँ पे हमने एक पॉइंटर यूज़ किया हुआ है जो यहाँ पे वेरिएबल पास हो रहा है उसकी एड्रेस को जो है वो स्टोर करेगा। और जैसे हमने नीचे मेन फंक्शन में आए, हमने एक एक्स वेरिएबल को जो है डिफाइन करा है जिसमें हमने 10 की वैल्यू डाली। और पहले हमने वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो इनिशियली अगर प्रिंट करवाई तो हम देख सकते हैं कि उसमें वही वैल्यू आ रही है जो कि हमने ऑन इन द मेन फंक्शन जो है वो डिफाइन की हुई है। लेकिन उसके बाद हमने एक्स वेरिएबल जो हमने बनाया था उसको हमने अपने माय फंक्शन में पास कर दिया। और पास करने के बाद जो है उसकी हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है 50। अब वो 50 क्यों आ रही है, क्योंकि हम जाके अगर अपने माय फंक्शन में देखेंगे तो वहाँ पे उसने जो पैरामीटर्स जो उसने एड्रेस जिसमें ली थी वो अंदर जाके उसमें उस पर्टिकुलर वेरिएबल को जो है वो मैनिपुलेट कर रहा है, या उसकी जो एग्जिस्टेंस है या उसकी जो डेटा है उसको चेंज कर रहा है। तो उस चेंज का जो है डायरेक्टली इफेक्ट आपके मेन फंक्शन के वेरिएबल पे हो रहा है या उसकी एग्जिस्टेंस पे हो रहा है। तो इसीलिए जैसे हमने उसको आफ्टर द कॉल ऑफ फंक्शन प्रिंट करवाया तो उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट हुई जो कि हमने फंक्शन में उसको मैनिपुलेट करने के बाद डाली थी। तो ये आपका एग्जांपल था पास बाय रेफरेंस का, कि अगर आपको किसी भी फंक्शन को अपनी आपकी सारी जो डेटा या जो पैरामीटर्स जो आप पास कर रहे हैं उसको आपको कंप्लीटली एक्सेस देना है कि भाई ठीक है आप इस पर ऑपरेशन तो परफॉर्म करो, लेकिन हम उसी ऑपरेशन के परफॉर्म करने के बाद जो भी रिजल्ट उसमें आ रहा है हम उस चीज़ को जो है आगे अपनी एग्जीक्यूशन में लेना चाह रहे हैं। तो आप उसमें rather than just simple data types we will use the pointers. So this is what we are doing here. Asad, can you move forward please? Okay, now it's my turn. Now the second concept, or I can say the third main pillar of the object-oriented programming is encapsulation. Now encapsulation का मैं एक आपको बहुत ही रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको गेट करने की कोशिश कीजिएगा। क्या होता है कि अगर एक बंदा डॉक्टर के पास जाता है तो उसको डॉक्टर एक कैप्सूल देता है कि दिस कैप्सूल विल क्योर योर दिस पेन। अब उस कैप्सूल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं हमें नहीं पता। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कैप्सूल है, इसमें जो है एक रेड केमिकल है, एक येलो केमिकल है और फिर हमारे पास एक वाइट केमिकल है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि हमारी बॉडी में किसी एक ही ऑर्गन को ये सारे एलिमेंट्स चाहिए। लाइक रेड जो हमारे पास है यहाँ पे केमिकल वो हमारी हार्ट को चाहिए, और जो येलो केमिकल है हमारे पास वो किसी और चीज़ को चाहिए, और वाइट किसी और चीज़ को चाहिए। तो मतलब हमारे जैसी भी कैप्सूल हमारी बॉडी में एंटर होता है तो वो मतलब खुद ही ऑर्गन्स जो हैं उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ये नहीं होता कि एक ऑर्गन जिसको उस केमिकल की नीड ही नहीं है वो उसको एक्सेस कर रहा हो। तो एनकैप्सुलेशन का C++ में ऐसा ही कुछ मकसद होता है कि हम क्या करते हैं कि एक क्लास के अंदर मेथड्स और वेरिएबल्स इनकैप्सुलेट कर लेते हैं, मतलब उनको मर्ज कर लेते हैं। वैसे ही क्लास में एक मेथड्स और वेरिएबल्स ही होते हैं। तो इनकैप्सुलेशन में हम क्या करते हैं कि वेरिएबल्स तो उठाते हैं लेकिन उन वेरिएबल्स का स्कोप हम प्राइवेट कर देते हैं। प्राइवेट हम इसलिए उनका स्कोप करते हैं ताकि वो जो वेरिएबल्स हैं वो हर किसी को अवेलेबल ना हो, सिर्फ जिसको ज़रूरत है उसकी, जिसको पता है उस केमिकल का, उस वेरिएबल का, वही सिर्फ उसको एक्सेस करे, ना कि कुछ और। तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ C++ में। पहले तो मैं ये कोड कॉपी करूँगा एनकैप्सुलेशन का। डायरेक्टिव्स इसलिए जो है हमने पहले ही स्क्रीनशॉट लगाए हुए थे क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है खुद से कोड करना बार बार। लेट्स स्टार्ट दी IDE। जो IDE मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है dev C++ which is faster and it has white background unlike than turbo। तो मैंने क्या किया, ये पहले मैंने अपने डायरेक्टिव्स प्री डायरेक्टिव्स लगा दिए। अब मैं एक मेथड बना रहा हूँ इंट मैन का। यहाँ से हमारे प्रोग्राम की जो है गेटवे शुरू होता है हमारा प्रोग्राम, लेकिन मुझे एक क्लास चाहिए। और हमने जैसे देखा कि इनकैप्सुलेशन करता क्या है कि हमारे पास मेथड्स होते हैं और मेंबर्स होते हैं, दोनों इनकैप्सुलेटेड होते हैं आपस में। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। हमने एक क्लास बनाई, क्लास कैप्सूल, और ये इसका स्कोप हमने यहाँ ख़त्म किया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक्सेस मॉडिफायर दे रहा हूँ प्राइवेट। मतलब अब जो मेरी फील्ड होंगी वो यहाँ पे प्राइवेट होंगी। अब मैंने एक फील्ड बनाई इंट रेड, जो कि फॉर एग्जांपल रेड केमिकल को कर रहा है रिप्रेजेंट, फिर इंट येलो। अब ये जो दोनों वेरिएबल हैं हमारे, ये हमारे पास प्राइवेट हैं। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे आकर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इस क्लास का, कैप्सूल क्लास का OBJ, और यहाँ पे मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे कुछ भी सजेशन नहीं आ रही। लाइक यू सॉ दिस लोडिंग कर्सर, बट हमारे पास कोई सजेशन नहीं आई कि मतलब किसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास हैं मेंबर्स, डेटा एलिमेंट्स, ये प्राइवेट हैं। तो इनका स्कोप सिर्फ इस क्लास तक है, इसके बाहर किसी भी मेथड में या किसी भी क्लास में इनका स्कोप नहीं होगा। अब यहीं पे मैंने एक पब्लिक डेटा मेंबर में बना रहा हूँ, फॉर सपोज इंट वाइट।
अब यहाँ पे अगर मैं दोबारा इसको कॉल करूँ ऑब्जेक्ट डॉट, तो यू कैन सी वी आर गेटिंग दिस सजेशन ऑफ वाइट वेरिएबल। तो ये पब्लिक है तो इसका स्कोप यहाँ पे आ रहा है, लेकिन प्राइवेट का स्कोप यहाँ पे नहीं आ रहा। तो एनकैप्सुलेशन हमारी क्या करती है, पहले तो एनकैप्सुलेशन में जितने भी आपकी डेटा फील्ड्स होंगी उनको आप प्राइवेट करोगे, और फिर वहाँ पे आप यूज़ करोगे गेटर एंड सेटर्स। अब गेटर एंड सेटर्स क्या होते हैं, गेटर का मतलब है कुछ ऐसा मेथड जो किसी डेटा को गेट करे, और सेटर का मतलब होता है कि कुछ ऐसा मेथड जो किसी वैल्यू को सेट करे। अब जितने हमारे पास प्राइवेट मेंबर्स होंगे, यहाँ पे 2 हैं, तो हम उतने हैं उनके डबल में जो है मेथड बनाएंगे, एक गेट का मेथड बनाएंगे, एक सेट का मेथड बनाएंगे। लाइक वी हैव दिस हेयर 2 वेरिएबल्स, तो हमारे पास टोटल 4 मेथड्स बनेंगे। तो मैं मेथड्स बनाने लगा हूँ। पहले तो मैं एक्सेस इस पे मॉडिफायर दूंगा पब्लिक, क्योंकि ऊपर हमने प्राइवेट लिख दिया, तो अब ये सीक्वेंस प्राइवेट में ही चलती रहेगी। अगर हमें इंटरप्ट करना ही है ये सीक्वेंस, तो हम दोबारा कोई और जो है एक्सेस स्पेसिफाई देंगे पब्लिक। अब यहाँ पे मैं मेथड बना रहा हूँ वॉइड सेट रेड। अब देखें कि यहाँ पे जो रेड है उसकी इंटीजर वैल्यू है, और उसे हमें सेट करना है। तो हमें यहाँ पैरामीटर भी एक कुछ ना कुछ यहाँ पे पास करूँगा जो इसको जाके सेट करे, और मैंने यहाँ लिख दिया सर रेड इक्वल टू यस। फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं? Let me see. Is it okay now? Yes, it's better. Thank you. Okay, so we have set this red variable via a method. We are not directly accessing this red variable because we can't access it outside of the class, but we can access the methods. So we created a method set red. Now we will get this red. Now getting the red means getting this value which is integer. Now we will be using the int data type, int get red, और जो है यहाँ पे हम सिंपली रिटर्न कराएंगे रेड एलिमेंट। अब ऐसे ही येलो का भी हमारे पास जो है एक 2 मेथड्स बनेंगे, विच विल बी सेट येलो एंड गेट येलो। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास एक प्राइवेट हमारे पास जो फील्ड्स थी उनको हम सेट और गेट कर रहे हैं वाया मेथड्स। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन। लेट्स सी अगेन स्लाइड्स। अब इनकैप्सुलेशन में ये होता है। अब इनकैप्सुलेशन क्यों ज़रूरी है हमारी, हमने ये सीख लिया कि कैसे होता है, प्राइवेट फील्ड्स होती हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम गेटर और सेटर यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा ये किस काम का, मतलब इनकैप्सुलेशन किस काम की, तो ये आपको मैं एक केस स्टडी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कल को आप जा रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने, लेकिन उसमें एक डिपार्टमेंट नहीं होता। ऑपरेशंस का अलग डिपार्टमेंट होता है, डिज़ाइन का अलग डिपार्टमेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ें, आप एक अपनी डिपार्टमेंट की किसी सोसाइटी को जो है डिनोट करते हैं हम। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम अपनी डिपार्टमेंट की कोई सोसाइटी। अब हमारे पास एक सोसाइटी है जिसमें फोटोग्राफी की टीम है, डिज़ाइन की टीम है, ऑपरेशंस की टीम है, मैनेजमेंट की टीम है, लेकिन चारों आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। लाइक अ फोटोग्राफर जो है वो अगर पिक्चर्स लेगा इवेंट में, तो वो डायरेक्टली मैनेजमेंट को नहीं देगा, उसको वो ग्राफिक डिज़ाइनर टीम को देना है पिक्चर्स, ताकि वो ग्राफिक डिज़ाइन वाले उस पर लोगो लगाएं, उस पर अपनी फंक्शनैलिटीज़ लगाएं, बाद में वो जाके मीडिया टीम पे जाएंगे और वो अपलोड होंगे और इस तरह से सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो मतलब ये एक प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। लेकिन अब अगर फोटोग्राफर जो पिक्चर्स अपलोड कर रहा है किसी सर्वर पे, वो मैनेजमेंट एक्सेस कर ले, तो मतलब एक आपका जो प्रोसेस चल रहा है स्टैंडर्ड, वो फेल हो जाएगा। मैनेजमेंट ने एक्सेस कर लिया विदाउट ग्राफिक डिजाइनर्स एंड ऑल दिस। तो ये जो है ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन। लेट्स सी व्हाट वी हैव आफ्टर एनकैप्सुलेशन। ओवर टू यू मुजम्मिल। थैंक यू, दैट्स ऑफ ग्रेट। सो गाइस, जस्ट टू बी श्योर कि जो अभी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं वो चार के इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस, ये बेसिकली फीचर्स हैं किसी भी जनरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि भाई C++ इज एन ऊप लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो ये लाजिम है कि वो हमें ये करंट फीचर्स जो है वो ज़रूर ही अवेल करे या उस वो हमें जो है वो फराहम करे। तो बेसिकली इनहेरिटेंस क्या होती है कि इनहेरिटेंस आपके किसी भी, अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल ले लें, तो हमारे पास जो रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें होती हैं वो यही होती हैं कि किसी एक चीज़ जो एग्जिस्ट करती है, हमारे पास उस चीज़ में से कुछ कुछ चीज़ें ड्राइव करने की या कुछ चीज़ें और इन्वेंट करने की कैपेबिलिटी होती है। यानी कि ऐसी चीज़ें इन्वेंट करने की जिसमें उस करंटली एग्जिस्टिंग चीज़ की सारी प्रॉपर्टीज, सारे फंक्शनलिटीज़ हों, लेकिन हमारे पास ये भी अथॉरिटी हो कि हम उस नई चीज़ में कुछ न्यू फीचर्स या न्यू फंक्शनलिटीज़ जो हैं वो भी ऐड कर सकें।
तो अगर बेसिक एग्जांपल देखा जाए इनहेरिटेंस का, तो एक जनरली एनिमल है। एनिमल आपकी जो है यहाँ पे एक पेरेंट एंटिटी है, या पेरेंट एंटिटी हम अगर यहाँ पे कहें कि बेस क्लास है जो कि पहले से एग्जिस्ट करती है, या एक होल कैटेगरी है अगर हम रियल लाइफ में देखें तो। अगर हम एनिमल को रेफर करेंगे तो वी विल नॉट जस्ट से कि this is just a single entity. Animal is whole category. It will have more than several child classes like dog. तो डॉग, कैट, etc मच मोर। सो अगर हम एनिमल को देखें तो एक एनिमल या एक सिंपल से जानवर की खुसूसियात क्या होती हैं कि वो इट कैन ईट, इट कैन स्लीप। दीज आर द फीचर्स ऑफ एनी बेस क्लास। बट इफ वी जस्ट ड्राइव एनी चाइल्ड क्लास और एनी सब क्लास ऑफ दैट बेस क्लास, तो फॉर एग्जाम्पल टेक इट एज अ डॉग, तो डॉग के पास ऊपर वाली जो एनिमल की जनरल खुसूसियात या जनरल फीचर्स जो थे वो तो होंगे, लेकिन उसके बाद अपनी जो है एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी वो कौन सी है कि इट कैन बार्क, इट कैन आल्सो बार्क, बट नॉट एवरी एनिमल कैन बार्क। सो दिस इज द पर्टिकुलर इट्स पर्सनल फंक्शनैलिटी ऑफ एनी ड्राइव क्लास व्हिच इज अ डॉग। तो इनहेरिटेंस का सिंपल कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि हमारे पास इनहेरिटेंस में या एक प्रोसेस में दो चीज़ें होती हैं। एक होती है बेस क्लास which has its members, methods and variables, और एक उसके बाद हमारे पास होती है एक ड्राइव्ड क्लास जिसको हम चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं, और बेस क्लास को हम पेरेंट क्लास से भी रेफर करते हैं। तो ड्राइव्ड क्लास के आपके पास फीचर्स क्या होते हैं कि जो ड्राइव्ड क्लास आपके जिस पेरेंट क्लास से एक्सटेंड हो रही है, जिससे इनहेरिट हो रही है, उसमें आपके पेरेंट या बेस क्लास के सारे फीचर्स, सारे मेथड्स, सारे वेरिएबल्स वो तो आ जाएंगे, लेकिन हम उसमें जो है अपने एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स, कुछ वेरिएबल्स, कुछ मेंबर्स जो हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली द इम्पोर्टेंस ऑफ इनहेरिटेंस। क्योंकि हम, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, कि किसी भी जनरल ऊप लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, रियल लाइफ या रियल वर्ल्ड अप्रोचेज जो है वो यूज करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है कि पहले से जो एंटिटी बनी हुई है, पहले से जो क्लास बनी हुई है, हम उसको सिर्फ एक या दो लाइन ऑफ कोड में हम उसकी फंक्शनैलिटी सारी यूज तो कर लें, लेकिन हम उसमें जो है कुछ अपने एक्स्ट्रा फीचर्स भी वो आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकें या डाल सकें। तो अगर यहाँ पे आप इस पिक्चर पे फोकस करें, तो देयर इज ए फर्स्ट बेस क्लास व्हिच हैज सम एबिलिटीज लाइक इट कैन कुक, इट कैन सिंग, इट कैन डांस एंड इट कैन टीच, but it has a few child classes in which they also have the same parent functionalities which they derived from their parent class, but they also have some personal functionalities which are just further or more than their parent class. अगर हम यहाँ पे फर्स्ट एंटिटी को देखें तो यहाँ पे इसके बाद उसकी पेरेंट क्लास की एबिलिटीज जो थी, जो कि कुक, सिंग, डांस और टीच, ये तो थी, लेकिन उसके बाद अपनी जो है कुछ पर्सनल या एक्सटेंडेड फंक्शनलिटीज भी हैं जिसको जो कि उसके पास हैं। इट कैन फ्लाई प्लेन्स और इट कैन प्ले फुटबॉल। ऐसे हमारी जो सेंटर वाली जो एंटिटी है जिसने एक पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया है, उसके पास जो है अपनी न्यू स्किल्स जो हैं फर्दर देन इनहेरिटेड स्किल्स, डेटा इट कैन कोड, and just like these two, the third entity which is also extended from the same parent class, it has also its extended features or extended functionalities, which is it can shoot guns and it can repair electronics. So basic idea हमारे पास inheritance का क्या था कि हमने एक पहले से बनी हुई entity को reuse तो किया, लेकिन उसमें जो है हमने अपनी न्यू फंक्शनलिटीज या जो अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जो न्यू फीचर्स है वो भी हमने ऐड कर दिए। अगर हम अपने कोड के एग्जांपल में आए, तो जनरल एक एग्जांपल लें कि भाई एक आपका जनरल एनिमल है जिसके पास अपने कैपेबिलिटी है कि वो आपके पास ईट की जो फंक्शनलिटी है, जो कि खाने की फंक्शनलिटी है, वो भी कर सकता है, और उसके बाद जो है उसके बाद स्लीप की भी फंक्शनलिटी है, वो भी वो यूज़ कर सकता है। यानी कि एक जनरल एनिमल अगर हम लें तो वो एक कोई चीज़ खाने के भी काबिल है और सोने के भी काबिल है। तो ये आपकी एनिमल क्लास की जो है दो मेंबर्स होंगे या दो फंक्शनलिटीज़ होंगे या दो मेथड्स हो गए अगर आप लें तो प्रोग्रामेटिकली। उसके बाद हमने दूसरी एक क्लास बनाई जिसको हमने डॉग का नाम दिया, और उसे हमने क्या किया, डॉग को हमने इनहेरिट करवाया। इनहेरिट तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे करवाया, नेम ऑफ द चाइल्ड क्लास, देन द कॉलन एंड द नेम ऑफ द पेरेंट क्लास। दिस मीन्स के डॉग इज इनहेरिटेड बाय एनिमल क्लास। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब है कि डॉग के पास जो है एनिमल की सारी जो फंक्शनलिटीज थे, सारे जो फीचर्स थे, सारे जो मेथड्स थे, वो ऑटोमेटिकली इस लाइन में ही उसके पास आ गए। अगर हम आगे इसमें कुछ अपनी चीज़ें, अपनी पर्सनल फीचर्स या पर्सनल फंक्शनलिटीज़ अगर देना चाह रहे हैं तो वो दे सकते हैं, अगर ना भी दें तो इससे ये हमें पता चल गया कि डॉग के पास ईट और स्लीप की तो मेथड्स होंगे ही होंगे।
उसके बाद हमने डॉग में क्या किया, एक पब्लिक एक्सेस का मेथड हमने इम्प्लीमेंट किया विच इज़ वॉइड बार्क, विच इज़ के डॉग की एक पर्सनल फीचर है कि इट कैन बार्क आल्सो, एंड देन वी जस्ट प्रिंटेड समथिंग। देन इफ तो जब हमने डॉग का एक ऑब्जेक्ट बनाया विच इज़ डॉग डी के नाम से, उसके बाद जैसे मैंने कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के फीचर्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट के मेथड्स को कॉल या एक्सेस करने के लिए हम उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख के उसके बाद डॉट ऑपरेटर अगर यूज़ करें, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डी हमने जैसे डी डॉट किया तो उसके पास हमें तीन फंक्शनलिटीज़, 3 मेथड के जो हैं वो ऑप्शन दे रहे हैं, जो कि वो बता रहा है कि आपके ये सारे डॉग में अवेलेबल हैं। हालांकि अगर आप देखें डॉग में, तो डॉग में हमने सिर्फ एक मेथड ही जो कि बार्क है वही इंप्लीमेंट किया है, लेकिन वो हमें एक्स्ट्रा मेथड जो कि ईट और स्लीप है वो भी दे रहा है। तो इसका मकसद ये है कि ये जो ईट एंड स्लीप मेथड्स हैं वो हमारे पास उसकी पेरेंट क्लास से इनहेरिट होके आ रहे हैं, वो हमें एक अलग से डॉग क्लास में डिफाइन करने की या बनाने की ज़रूरत नहीं थी। यानी कि हमने अपना जो एक पहले से बना हुआ कोड था उसको हमने आसानी से रीयूज़ कर दिया। तो इनहेरिटेंस का मेन हमारे पास एडवांटेज ये भी है कि हम पहले से बनी हुई चीज़ को इनहेरिट करके उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं, और उसमें जो है एक्सटेंडेड फंक्शनलिटीज़ भी आसानी से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Asad, can you please move forward? Okay, then if you पहले एग्जांपल में अगर आप देखें तो there are basically different types of inheritances. So यहाँ पे था कि पिछले हमारे एग्जांपल में था कि हमारे पास सिंपल एक एनिमल क्लास थी, उसमें से एक सिंगल एंटिटी या सिंगल ड्राइव्ड क्लास जो है वो निकल रही थी, जो कि हमारे पास थी डॉग। लेकिन उसके बाद हमारे पास आती है मल्टी इनहेरिटेंस, व्हिच मीन्स के आपके पास जो है एक जो भी क्लास है वो आपके पास 2 पेरेंट क्लासेस से एक्सटेंडेड है। यानी कि अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो हमारे पास वही सेम एनिमल की क्लास तो है, लेकिन उसके बाद हमारे पास एक मैमल की क्लास भी है जिसमें उसकी एक अपनी फंक्शनलिटी है विच इज़ वॉइड फीड, यानी कि उसके वो इट कैन आल्सो फीड। तो अगर हम क्लास गोट देखें जो कि हमारी तीसरी बेस क्लास है, उसमें आप देख सकते हैं कि इट इज एक्सटेंडिंग 2 क्लासेस व्हिच आर मैमल एंड फीड। तो इसका मतलब ये है कि इट विल be able to access functionalities of both the classes which are going to be mammal and animal. So यहाँ पे एक्सटेंड करने से, इनहेरिट करने से हमारे पास 3 चीज़ें उसके बाद ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ही एक्सेसिबल हो गई। वो कौन सी थी? द फीड which was a functionality of the mammal class which is also its parent class, and other two are eat and sleep which are the functionalities are methods of animal class. तो हमने यहाँ पे गोट को जो है इनहेरिट कराया दोनों क्लासेस से, और उसके बाद जो है एक उसका अपना पर्सनल मेथड भी जो है वो एक इम्प्लीमेंट कर दिया जिसको हमने नाम दिया हु इज इट, एंड उसमें कोई भी चीज़ अगर हमने फंक्शनली जो है वो या कोई भी कोड जो है वो लिख दिया, तो इसके बाद हु इज इट जो है वो उसका कोड का पर्सनल मेथड हो गया। लेकिन उसके बाद जो है उसके पास जो अपने उसके पेरेंट क्लासेस के मेथड्स हैं वो भी एक्सेसिबल हो गए। तो अगर आप यहाँ पे राइट साइड में अगर मेन मेथड में देखें, अगर आपने गोड का एक ऑब्जेक्ट बनाया गोड जी, तो उसके उस जी से, उस गोड के ऑब्जेक्ट से एनिमल और मैमल और गोट, इन तीनों क्लासेस जो हैं वो मेथड्स हैं जो उसकी फीचर्स हैं वो आपको उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द पावर ऑफ इनहेरिटेंस कि आपने जस्ट एक ऑब्जेक्ट के जरिए, एक ऑब्जेक्ट के यूज से आपने 3 या मोर देन 3 क्लासेस आल्सो यू कैन आल्सो लाइक कैन मेक यूज ऑफ। असद, कैन यू प्लीज मूव फॉरवर्ड? या जस्ट अ पॉइंट टू नोट के मल्टीपल इनहेरिटेंस जो हमने पढ़ी जगह के one classes can be inherited by multiple classes or 2 classes. It is only available in C++. Other languages like Java or PHP or JavaScript, they are not capable to use multiple inheritance in their in their programming or in their code because of some particular reasons which will you will inshallah learn in future. So Asad, please move forward. Asad, can you please move forward? I'm on that slide. Well, it's not showing on my side. I think I might have some technical difficulties. You start with the polymorphism. It's polymorphism slide. Okay, polymorphism. So yeah, guys, like polymorphism, if we just have to define it in simple words, it means that one member of any class could have multiple forms but single name. कि अगर हम एनिमल की क्लास है उसको हम एक वॉक का अगर हम मेथड कहें तो
हर आपके पास जो एनिमल है उसके बाद वॉक का जो स्टाइल है मे बी वो चेंज हो सकता हो। वॉक में जो आपके नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं वो आपके यूज़ हो रहे हैं, वो आपके डिफरेंट हो रहे हों। तो पॉलीमॉर्फिज्म का जहाँ हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर होता है वो हमें ये बताता है कि आपके पास कोई भी मेंबर है, कोई भी मेथड है, आपके पास वो एक ही नाम के साथ जो है डिफरेंट फंक्शनलिटीज भी परफॉर्म कर सकता है। अगर हम उसको लाइव एग्जांपल में दें यहाँ पे which is simple as I said polymorphism, one man more lives and उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कोडिंग एग्जांपल है जो कि हम देख रहे हैं कि हमने एक क्लास बनाई फॉर एग्जांपल मोशन इक्वेशन। अब उस मोशन इक्वेशन में हमने पब्लिक कुछ मेथड्स बनाए विद द नेम ऑफ फाइंड डिस्टेंस। एज यू कैन सी के 3 मेथड हैं, तीनों मेथड का नाम जो है और रिटर्न टाइप जो है वो सेम ही है which is a find distance, but the change in them is के नंबर ऑफ पैरामीटर्स के पहला जो हमारे पास फाइंड डिस्टेंस का मेथड है उसमें हमारे पास कोई भी पैरामीटर्स यूज नहीं हो रहा है, और लेकिन दूसरा जो है उसमें हमारे पास 2 पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं विच आर द टाइप इंटीजर, और हमारे पास तीसरे में जो है 3 पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं विच आर द टाइप इंटीजर्स आल्सो, बट द नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर चेंज इन ऑल द मेथड्स, बट ऑल द मेथड्स हैव सिंगल नेम। तो इस फंक्शनलिटी को इस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग, which means के आपका function will have same name but different parameters, and it will be like just a compile time that which method of that class to be called। कि अगर हम यहाँ पे मेन फंक्शन में देखें कि जैसे हमने मोशन इक्वेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद अगर हम उस ऑब्जेक्ट से कोई मेथड कॉल करना चाह रहे हैं तो उससे हमारा स्पेसिफाई हो रहा है कि यहाँ पे हम उन तीनों में से कौन सा हमारा स्पेसिफिक मेथड जो है वो कॉल कर रहे हैं। अगर हम उसमें कोई भी पैरामीटर्स पास नहीं करेंगे तो वो कंपाइल टाइम पे ये समझ जाएगी C++ कि आपका जो फर्स्ट वाला मेथड था जिसमें कोई भी पैरामीटर कॉल पास नहीं हो रहा है वही कॉल करना है। अगर हम सेकंड में आएंगे जिसमें हमारे पास 3 पैरामीटर्स कॉल हो रहे हैं तो उससे भी वो अंडरस्टैंडेबल है कि हमारा जो थर्ड वाला मेथड है जिसमें हमारे पास 3 पैरामीटर्स इंटीजर टाइप के हैं वही मेथड कॉल करना है। थर्ड वाले मेथड में भी हमारे पास यही हो रहा है कि यहाँ पे हमने जैसे ही 2 पैरामीटर्स हमने सेंड किए तो इसमें वो ऑटोमेटिकली कोड हमारा जो हमारी बैकएंड की C++ है वो हमारा कंपाइलर जो है वो समझ रहा है कि हमें इस कॉल पे सेकंड वाला मेथड जिसके पास 2 पैरामीटर्स पास हो रहे हैं वो कॉल करना है। और यहाँ पे आपके पास एक मेन चीज आ रही है विच इज कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप्स। कि आप अगर सेकंड मेथड विच इज फाइंड डिस्टेंस विच हैव 2 पैरामीटर्स, इफ यू कैन सी कि हमने पास तो जो है वो इंटीजर पैरामीटर्स किए, लेकिन हमने अंदर जो है हमारे पास एक डिवीजन में एक वेरिएबल आ रहा है विच इज 2 × 9.8। तो अगर डेसिमल पॉइंट में अगर कोई नंबर आता है तो या उसके साथ अगर हम कोई भी फंक्शनलिटीज या कोई भी ऑपरेशन अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है अगर वो हम परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास वो जो रिटर्न करता है अपनी रिजल्ट करता है वो हमारे पास फ्लोट टाइप में रिटर्न करता है। हालांकि हमने जो पैरामीटर्स या जो फंक्शन में ली हैं वो एक इंटीजर टाइप की हैं, लेकिन हमने जो डिस्टेंस जो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारे पास जो है वो हमने उसे उसकी डेटा टाइप चेंज कर दी फ्लोट में। अब वो चेंज कैसे करते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं कास्टिंग ऑफ डेटा टाइप्स। लाइक के पहले आपके पास थे इंटीजर टाइप्स, हम जो वैसे भी जो अर्थमेटिक ऑपरेशन जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है वो सारा उन इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स पर ही हो रहा है, लेकिन वो जैसे ही हमें सिंपल वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल हमें फ्लोट टाइप की डेटा जो है या रिजल्ट जो है वो हमें रिटर्न कर रहे हैं, तो हमने उसको फ्लोट डिस्टेंस वेरिएबल में सेव कराने के लिए हमने एक फ्लोट जो है वो सिंपल पैरेंथेसिस में यहाँ पे ऑन द राइट साइड रख दिया, जो कि ये बता रहा है कि जो भी रिजल्ट आ रही है हमारी इस कैलकुलेशन से उसे भले ही वो 0.0 में हो, पॉइंट समथिंग में हो या किसी भी टाइप की रिजल्ट हो, आप उसको फ्लोट डेटा टाइप में कास्ट करके डिस्टेंस जो है जो कि फ्लोट वेरिएबल है उसमें आप सेव करते हैं। तो भले ही आपकी यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप भी कैलकुलेट हो गए, फिक्स नंबर आ रहा हो 2 पॉइंट, बट आपको वो अगर हमने फ्लोट यूज किया है तो वो ऑटोमेटिकली उस इंटीजर को 2 पॉइंट को हमारे फ्लोट डेटा टाइप यानी कि 2.0 में चेंज कर देगा। तो दिस वाज बेसिक टॉपिक ऑफ conversion of data types which was also part of our this session. So yeah, this was basic method overloading कि आपके पास किसी भी एक क्लास में आपके पास एक मेथड का नाम जो है वो सेम ही होगा, उसका रिटर्न टाइप जो है वो सेम ही होगा, लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स उसमें जो है वो चेंज होंगे। तो अगर ये चीज़ या ये अप्रोच अगर यूज़ हो रही है तो हम उसे जो है मेथड ओवरलोडिंग कहेंगे। तो वहाँ पे आपका क्या हो रहा था, सेम क्लास ही, लेकिन हम आगे आए विच इज़ द सेकंड टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म विच इज़ द फंक्शन ओवरराइडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। तो पिछले एग्जांपल में आपके पास जो कि ओवरलोडिंग का एग्जांपल था उसमें क्या हो रहा था कि आपके एक ही क्लास के जो डिफरेंट मेथड्स थे
उसमें नाम सेम था लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज थे। लेकिन आपके पास फंक्शन ओवरराइडिंग या मेथड ओवरराइडिंग जो अप्रोच है उसमें उसका मतलब ये है कि हमारे पास एक जो पेरेंट क्लास होती है, एक पेरेंट क्लास होती है जिसके पास कोई भी एक अपना फीचर है, अपना मेंबर है, अपना मेथड है, और उसे अगर कोई चाइल्ड क्लास या कोई सब क्लास जो है वो इनहेरिट कर रही है, लेकिन उसके बाद इनहेरिट करने के बाद उसने जो अपना वे ऑफ फंक्शन है, वे ऑफ परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर एक्शन जो कि उसे अपनी बेस क्लास से मिल रहा है, अगर वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज करना चाह रही है या उसका तरीक़ेकार चेंज करना चाह रहा है, तो हम उस चीज़ को जो है मेथड ओवरराइडिंग कहेंगे। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल में देखें कि हमारे पास क्लास एनिमल विच इज़ द बेस क्लास और वर्किंग एज ए पेरेंट क्लास विच इज़ ए मेथड और फंक्शन ऑफ वॉइड साउंड, और उसमें हम क्या करा रहे हैं कि वी आर जस्ट प्रिंटिंग द एनिमल साउंड विच इज जनरल एनिमल साउंड। लेकिन उसके बाद जैसे ही हमने एक बेस क्लास और सॉरी एक चाइल्ड क्लास बनाई एनिमल की विद द नेम डॉग, उसके बाद उसके अंदर हमने सेम ही मेथड जो है वो ओवरराइड या उसकी जो फंक्शनैलिटी थी वो रीडिफाइन कर दी। वो कौन सा मेथड है? वो मेथड आपका वही है जो कि आपको एनिमल क्लास से मिल रहा है या जो आपको पेरेंट क्लास से मिल रहा है, लेकिन आपने उसका अंदर की जो बॉडी थी, अंदर की जो इम्प्लीमेंटेशन थी, उसको हमने अपने हिसाब से लिख दिया, अपने हिसाब से चेंज कर दिया। और नीचे जो है ऑटोमेटिकली मेन फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे आपका साउंड जो मेथड है वो उस ऑब्जेक्ट का कॉल होगा जिस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है। अगर आपने यहाँ पे डॉग डॉग बनाया तो ऑटोमेटिकली ये पहले प्रेफरेंस जो है वो आपके डॉग के अपने पर्सनल मेथड को देगा विच इज द साउंड विद द सी आउट डॉग साउंड। लेकिन अगर यहाँ पे ये चीज़ ऑलरेडी अगर अलग से डिफाइन हुई पड़ी ना होती तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो एनिमल का जो साउंड मेथड है उसको कॉल करता। लेकिन अगर हमने इस मेथड को ओवरराइड करके इसे अपनी फंक्शनैलिटी दे दी तो इससे जो है हमने तो उसने ऑटोमेटिकली जो है वो डॉग क्लास की जो साउंड मेथड है उसको कॉल कर दिया। तो अगर आप देखें कि इन चीज़ का फ़ायदा जो है वो हमारे पास क्या होगा कि आपके पास अगर मेथड ओवरलोडिंग के जो पीछे प्रोसेस था तो उसका आपके पास बेनिफिट यह है कि आपके पास there can be multiple possibilities for multiple users with respect to their requirements। अगर हम यानी कि हमारे पास मल्टीपल टाइप के यूज़र हैं जिसमें हम उनसे कोई प्रोसेस या कोई उन्हें फीचर जो है कोई सर्विस जो है फराम कर रहे हैं, लेकिन उनसे जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ से जो है एक दो टाइप की डेटा हो सकती है कि किसी से हम सिर्फ नाम और नंबर ले रहे हैं, लेकिन हम तीसरे बंदे से जो है उससे हम नाम, नंबर और एनआईसी जो है वो उसकी डेटा भी ले रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, रेदर देन कि हम आगे अपने फ्यूचर में जो है अपने कोड में कुछ चेंजिंग्स करें उस पर्टिकुलर यूज़र के लिए, हमने पहले ही अपने क्लास में अपने प्रोजेक्ट में जो है कुछ मल्टीपल ऑप्शन रख दिए कि भाई अगर आपके पास फ्यूचर में एक ऐसा यूज़र आ रहा है जिसको आपने सिर्फ दो टाइप की डेटा लेनी है या दो पैरामीटर्स लेने हैं, तो आप वहाँ पे जो है सिर्फ एक दो पैरामीटर्स वाला फंक्शन यूज़ करें। और अगर आपको कोई ऐसा यूज़र आ रहा है जिससे आपको थ्री टाइप्स ऑफ डेटा लेनी है जिसमें आपको एनआईसी का नंबर भी लेना है, तो आप उसके साथ जो है थ्री पैरामीटर्स वाला फंक्शन जो है वो यूज़ करें। तो ये आपका हो गया बेनिफिट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। बट अगर बेनिफिट ऑफ मेथड ओवरराइडिंग देखें तो इफ एनी चाइल्ड वांट्स टू लाइक चेंज इट्स वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग और परफॉर्मिंग ए टास्क, कि देखें आजकल का रियल वर्ल्ड का एग्जांपल अगर आप लें तो एक टीचर है, अगर वो आपको एक चीज़ पढ़ा रहा होता है, एक वे में पढ़ा रहा होता है, ठीक है, लेकिन आप उससे वो नॉलेज जो है वो लेते तो हैं, लेकिन अगर आप आगे अगर किसी को वो फराम करना चाहें, आगे अगर आप किसी को पढ़ाना चाहें तो यू यूज़ योर ऑन वे, कि आप काम क्या कर रहे हैं, वही सेम काम कर रहे हैं, टीचिंग का कर रहे हैं, वही चीज़ सेम पढ़ा रहे हैं जो कि आपको टीचर ने पढ़ाई थी, लेकिन आपने उस चीज़ का, उस प्रोसेस का जो वे है, इम्प्लीमेंटेशन का जो तौर तरीका है, वो आपने अपने हिसाब से चूज़ किया, अपने हिसाब से उसको ओवरराइड कर दिया। तो ये आपका रियल वर्ल्ड एग्जांपल होगा आपकी फंक्शन ओवरराइडिंग का। Asad, you can move forward. So yeah, learning about polymorphism for the first time, it means that reality can be whatever I want. Like you can just have different type of sample for any particular thing in your project. It's object oriented, boys. Go ahead. I hope now there will be no oops in OOP, and we can just move to next topic, which over to you, Asad. Okay, we can see that what object-oriented programming is. Like you can see it's easy, but rather it is so complicated. It's all about your practice. How much you will do practice, it will result in your improvements, right? So object-oriented programming is clear here right now. Let's move forward to our other topic, which is unary and binary operator overloading.
अब यूनरी ऑपरेटर जो होता है, यूनरी लफ्ज़ का जो मायना है वो ये है कि सिंगल आर्ग्यूमेंट या सिंगल ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होती है? ऑपरेशन का मतलब होता है कोई भी मेथोडोलॉजी, कोई भी मेथड या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये ऑपरेशंस होती हैं। तो यूनरी में क्या होती है कि हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट होती है। जैसे वेरिएबल्स में हम क्या करते हैं, आई इक्वल्स टू 1 + 2, तो यहाँ पे ऑपरेंड्स दो हैं, ऑपरेशन एक है प्लस। लेकिन अगर मैं लिखूँ आई इक्वल्स टू आई प्लस प्लस, तो अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, आई की ही वैल्यू में 1 प्लस कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ 1। तो इस टाइप की चीज़ को हम यूनरी कहेंगे। सो यूनरी का एग्जांपल देखते हैं हम, लाइक वी हैव क्लास डिस्टेंस। डिस्टेंस क्लास में मेरे पास दो पब्लिक फील्ड्स हैं, फ्लोट फीट एंड इंच। इनकी मैंने जो डेटा टाइप लिखी है वो है फ्लोट, क्योंकि फीट हमारे पास डेसिमल्स में होते हैं और इंचेस भी हमारे पास डेसिमल में हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं डिस्टेंस, फ्लोट फीट, फ्लोट इंच। अब ये आप देखें, ये डिस्टेंस नाम, इसका नाम, मेथड का नाम और ये क्लास का नाम सिमिलर है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक क्लास का नाम और उसके में कुछ मेथड का नाम या किसी फंक्शन का नाम सिमिलर हो? या दिस इज पॉसिबल। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है? हमारे पास एक स्पेशल मेथड होता है। एक हमारे पास नॉर्मल मेथड्स होते हैं जिनका कोई ना कोई रिटर्न टाइप होता है, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। यू कैन सी आई हैवंट राइट हियर द वॉइड। मैंने डायरेक्ट जो है डिस्टेंस यूज़ किया है, नेम जो क्लास का नाम था, और मैंने पैरामीटर्स पास कर दिए विच इज़ फ्लोट फीट एंड फ्लोट इंच। अब ये जो मेथड है कंस्ट्रक्टर, ये कब वर्क करता है? जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का, तब ये कॉल होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे ही इससे। अब मैं इस कंस्ट्रक्टर में क्या कर रहा हूँ, दिस एरो फीट। अब इस एरो को यूज़ करने का क्या रीज़न था? अब ये एरो जो मैंने यूज़ किया है, इससे ये मैं डिनोट कर रहा हूँ कि मुझे जो वेरिएबल चाहिए वो इसी क्लास का चाहिए। मुझे ये जो फीट चाहिए ये इस क्लास का चाहिए, इस डिस्टेंस क्लास का चाहिए। क्योंकि अब क्या है मेरे पास के डिस्टेंस जो मेथड है मेरा, उसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं, फीट एंड इंच। अब उन दोनों का नाम जो है वो सेम है जो मेरे क्लास के वेरिएबल्स का नाम है, ठीक। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा, या कंस्ट्रक्टर को मैं कैसे, ये कंपाइलर जो है उसको मैं कैसे बताऊं कि मुझे कौन सा वाला जो है वेरिएबल जो है वो एक्सेस करना है? तो दिस हम यूज़ करते हैं उसके लिए, जो डिनोट करता है कि हमारी अपनी क्लास, यानी कि इस क्लास डिस्टेंस क्लास का जो फीट वेरिएबल है उसको इक्वल कर दो फीट जो हमारे पास वैल्यू पास हो कंस्ट्रक्टर में उसके, और ऐसे ही इंच के साथ। मतलब ये हम कर रहे हैं इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। अब यहाँ पे हम मैंने मेथड में अगर देखें तो मैंने क्या किया है, डिस्टेंस एस इक्वल्स टू डिस्टेंस, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और इसमें वैल्यूज जो मैंने पास की हैं वो है 12.0 एंड 2.4। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये वैल्यूज जो हैं इस क्लास के इन क्लास के मेंबर्स को ये इनिशियलाइज कर रहा है। अब उसके बाद मैंने एक मेथड लिखा है वॉइड ऑपरेटर। ऑपरेटर जो है हमारे पास वो एक कीवर्ड है और फॉलोड बाय माइनस। अब यहाँ पे ये जो मैंने माइनस लिखी है ये मेरा ऑपरेटर है जो कि मैं ऑपरेटर ओवरलोड करवाना चाह रहा हूँ। अब मैं सिंपल ही यहाँ पे सिर्फ एक माइनस लिखी है और कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि मैं डिक्रीमेंट करवाना चाह रहा हूँ। तो डिक्रीमेंट अब ऑब्जेक्ट की नहीं होती, आप वेरिएबल लगा लें कि इंट 10, उसका आप इंट एक्स इक्वल्स टू 10। अब उसको अगर आपको डिक्रीमेंट करना है तो आप करेंगे एक्स माइनस माइनस, वो डिक्रीमेंट हो जाएगी। लेकिन एक ऑब्जेक्ट की आप डिक्रीमेंट कैसे कराएंगे? ये डायरेक्टली नहीं हो सकती, लेकिन C++ हमें प्रोवाइड करता है ऐसे मेथड जिसके थ्रू हो सकती है, पर उनको आपको पहले इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है वॉइड ऑपरेटर माइनस, इसका मतलब है कि ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। और इसमें मैंने क्या किया है, फीट, मतलब इस क्लास का जो मेंबर है फीट, वो माइनस माइनस कर दो, एंड इंच भी माइनस माइनस कर दो। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने दिस और ये वाली चीज़ जो एरो है वो क्यों नहीं लगाई, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये कोलिजन थी कि दो मेंबर्स थे मेरे, जो मेथड लोकल वेरिएबल्स हैं मेरे फीट, और जो क्लास के अपने वेरिएबल हैं उनका नाम सेम था। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा सीन नहीं है, यहाँ पे कोई वेरिएबल दूसरा नहीं है। तो ये ऑब्वियसली जो कंपाइलर है वो समझ जाएगा कि ये जो फीट है वो अपनी क्लास का मेंबर एक्सेस कर रहे हैं हम, और उसको डिक्रीमेंट कर रहे हैं, और रेंज को भी डिक्रीमेंट कर रहे हैं एट द सेम टाइम। और ये एट द सेम टाइम हम मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं कि डिक्रीमेंट बाय 1 न्यू रिजल्ट कॉलन फीट और इंच और फिर न्यू लाइन। और मेन मेथड में हमने क्या किया, डिस्टेंस एस एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें क्या किया, हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है 12.0 एंड 2.4। तो मतलब हमारे पास फीट जो हैं वो हैं 12 एंड हमारे पास इंचेस जो हैं वो है 2.4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस एस, मतलब मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ एस इस ऑब्जेक्ट को। अब इसका ये मेथड कॉल हो जाएगा और फीट में से भी माइनस माइनस यानी कि डिक्रीमेंट हो जाएगी, और इंचेस में से भी डिक्रीमेंट हो जाएगी। तो हमारे पास जो मैसेज शो हो रहा है वो है डिक्रीमेंट बाय 1 न्यू रिजल्ट 11 एंड 1.4। 12 में से 1 डिक्रीमेंट हुआ 11 एंड 2.4 में से 1 डिक्रीमेंट हुआ तो 1.4। दिस इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, बट दिस इज यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग।
नाउ वी विल सी द बाइनरी ऑपरेटर। अब बाइनरी ऑपरेटर में क्या होता है कि हमारा ऑपरेटर जो होता है, ऑपरेशन, वो एक ही यूज होता है, लेकिन हमारे पास जो ऑपरेंड होते हैं वो दो ऑपरेंड होते हैं। बाइनरी, बाय मीन्स टू, तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑपरेंड्स यूज होंगे एज अ ऑब्जेक्ट। कोड में देखते हैं, सेम मैंने एग्जांपल लिया है डिस्टेंस क्लास का, उसमें सेम मेंबर्स हैं हमारे, लेकिन मेरे पास यहाँ पे इस मेथड में सिर्फ डिफरेंस है। पहले ये जो मेथड था तब ये वॉइड था, राइट, यहाँ पे ये वॉइड था, लेकिन यहाँ पे मैंने इसकी जो रिटर्न टाइप है वो चेंज करके रख दी डिस्टेंस, जो कि इस क्लास की खुद की रिटर्न टाइप है। मतलब ये मेथड जब रिटर्न करेगा तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट करेगा रिटर्न, जो कि डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। ऑपरेटर कीवर्ड यूज़ किया, अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है प्लस, और यहाँ पे मैंने क्या पास कराया है, एक ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट, और उसका एड्रेस पास किया है D2, कॉल बाय रेफरेंस में यहाँ पे कर रहा हूँ। अब हम पिछले एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसा खास सीन नहीं था, मतलब कोई रिटर्न टाइप नहीं था, नल था, और यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास किया है क्योंकि मुझे यहाँ पे पैरामीटर यूज़ करना है। यूज़ कैसे करना है, मैं इस मेथड में आया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया डिस्टेंस D3, और उसको मैंने 0 वैल्यूज असाइन कर दी। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, D3.feet, मतलब D3 की जो फीट वैल्यू है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, this.feet, यानी कि इस क्लास के जो मेंबर हैं फीट और इंच, यहाँ पे मैं फीट एक्सेस कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ फीट कहूँगा, फीट इस क्लास का मेंबर प्लस जो हमारे पास यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आ रहा है उसका फीट, दोनों को सम कर दो और उसकी जो रिजल्ट आए वो D3 के फीट में स्टोर होनी चाहिए। और सिमिलरली इंच के साथ भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि इस क्लास का इंच प्लस D2 हमारे पास जो पैरामीटर है उसका इंच, दोनों को सम करें और जो है D3.inch में उसको सेव करें रिजल्ट। और फिर मैंने क्या किया, रिटर्न D3, मतलब मैं ऑब्जेक्ट जो D3 था उसको रिटर्न करा रहा हूँ, डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट है मेरा। मेन मेथड में मैंने क्या किया, एक डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट बनाया D1, उसमें मैंने वैल्यू दे दी 12 एंड 4। दूसरा मैंने ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने वैल्यूज दे दी 2 एंड 5। अब मैंने तीसरा जो है डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट बनाया D3, उसमें मैं सिंपली कॉल कर रहा हूँ D1 प्लस D2। मैं ये यहाँ पे ये नहीं कॉल कर रहा कि D1 डॉट ऑपरेटर प्लस और फिर ये D2, ये खुद ही कंपाइल टाइम पे जो है समझ जाएगा कि मुझे एडिशन परफॉर्म करनी है, तो मुझे ये ओवरलोड करना पड़ेगा मेथड जो इसमें डिफाइंड है, तो ये ओवरलोड करेगा ये मेथड, और यहाँ पे जो फंक्शनैलिटी है वो इसके थ्रू अचीव हो जाएगी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट रिजल्ट होगी वो क्या होगी, 12 प्लस 2, मतलब जो हमारे पास फीट हैं दोनों के वो आपस में ऐड हो जाएंगे 14, और फिर जो इंचेस हैं हमारे पास दोनों के वापस में ऐड हो जाएंगे 9, और वो स्टोर हो जाएंगे D3 में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सी आउट D3 फीट कॉलन D3.feet, मतलब D3 के जो फीट हैं वो प्रिंट करवा रहा हूँ और फिर उसी के मैं इंच प्रिंट करवा रहा हूँ एंड न्यू लाइन। तो आउटपुट हमारा यही आ रहा है। तो ये होती है हमारे पास बाइनरी ओवरलोड। इसके बाद जो हमारा आज के सेशन का आखिरी टॉपिक है वो है फाइल हैंडलिंग, माय पर्सनल फेवरेट, फाइल हैंडलिंग। अब फाइल हैंडलिंग हम क्यों यूज़ करते हैं? See, you all people are in first semester or second semester, or we can say in first year of your university. So what we do in file handling, we do a replica system of databases. Now see that you people are not learning databases. आपको database नहीं पढ़ाया जा रहा फिलहाल, जब तक आप जो है कोई सेकंड या थर्ड ईयर में नहीं आ जाते। तो आपको फिलहाल अगर आपकी कोई डेटा है प्रोग्राम में वो आपको स्टोर करवानी है कहीं पे, तो आप फाइल हैंडलिंग के थ्रू उसको स्टोर कराएंगे इन फाइल्स, क्योंकि आपने डेटाबेस अभी तक तो पढ़ा है नहीं। तो फाइल हैंडलिंग जो है वो एक रेप्लिका है। अब सी यहाँ पे ये रिजल्ट जो मेरे पास आ रही थी 12 टू ये 14 एंड 9, अब ये रिजल्ट आ गई मेरे पास, मैंने दोबारा प्रोग्राम को रन किया तो दोबारा भी यही रिजल्ट आएगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं प्रोग्राम शुरू करूँ तो ये 14 और जो 9 है ये खुद ब खुद जो है D1 में असाइन हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता विदाउट यूज ऑफ डेटाबेस और फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें डेटा अपना स्टोर करना होता है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, आपने कोई गेम बना ली, अब गेम में हाईएस्ट स्कोर जो आपका आया वो आप चाह रहे हैं कि वो रिकॉर्ड हो जाए कि ये अब तक का हाईएस्ट स्कोर है, लेकिन उसको आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे? आपका जो प्रोग्राम है C++ का एग्जीक्यूट होगा और फिर वो ख़त्म हो जाएगा, उसका मतलब ख़त्म, आपका कहीं भी डेटा स्टोर नहीं हो रहा। तो अगर वो आपको स्टोर करवाना है तो आप फाइल हैंडलिंग यूज़ करेंगे उसको स्टोर करवाने के लिए। फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, आप जो है लाइब्रेरी इंक्लूड करवाएंगे fstream। fstream का मतलब होता है फाइल स्ट्रीम, इसको आपने इंक्लूड करवा लिया, मतलब इसके आप जो भी मेथड्स होंगे या ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। यही तो होती है एक लाइब्रेरी की जितनी भी आपकी फंक्शनलिटी है वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में। तो अगर हमें एक फाइल क्रिएट करनी है तो हमारे पास एक मेथड है ओपन का, रीड करनी है तो हमारे पास मेथड है रीड का, और राइट करनी है तो हमारे पास मेथड है राइट का, और उसके बाद क्लोजिंग अ फाइल। अब फाइल क्लोज करना एक इम्पोर्टेंट है, ये क्रूशियल फेस लिखा है मैंने क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे आप ये बताएं कि आपने क्या किया, एक फाइल ओपन की, उसमें आपने कुछ ना कुछ डेटा जो है राइट किया, लेकिन वो आपने सेव नहीं किया अभी तक। वो सेव तब होगा जब आप उस फाइल को क्लोज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो जाता है। तो आपने जो फाइल पे लिखा वो यहाँ पे क्लोज जब आप मेथड कॉल करेंगे तब सेव होगा। सो डोंट फॉरगेट दिस क्लोज, राइट? लेट्स सी द कोड।
Now we want to create a file. So first we will include the fstream library and then we create a object of fstream which is obj. अब मैं क्या कर रहा हूँ, obj.open, मतलब मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ. अब ये जो ओपन मेथड है ये हमारे दो काम करता है. अगर फाइल क्रिएटेड नहीं है तो इसको क्रिएट करेगा, अगर क्रिएटेड है तो उसको ओपन करेगा, इसलिए इसका जो नाम है वो है डॉट ओपन. अब यहाँ पे मैंने लिखा है न्यू फाइल डॉट टी. अब मेरे सिस्टम में कोई भी पहले फाइल नहीं थी न्यू फाइल डॉट टी, तो मतलब ये फाइल क्रिएट करेगा. और इसके बाद जो पैरामीटर है ये कांस्टेंट पैरामीटर है. iOS का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम एंड दो कॉलन फिर आउट. ये जो पैरामीटर है ये आपको कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ये जो लास्ट वाला है इन एंड आउट उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से. अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट में आप क्या कर रहे हैं, ये फाइल जो है आप बना रहे हैं, लेकिन कहाँ से बना रहे हैं, किस में बना रहे हैं, इस कोड से बाहर बना रहे हैं आप कोई चीज़ वहाँ बाहर से अंदर नहीं ला रहे हैं. अगर आप बाहर से कोई चीज़ इंक्लूड अंदर करवाएंगे तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे इन, लेकिन यहाँ आप क्या कर रहे हैं, कोड से बाहर अपने सिस्टम में जो है वो को फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं, तो आप यूज़ करेंगे आउट. अब जैसे ये मैंने एग्जीक्यूट की फाइल और मैंने सर्च किया तो मेरे पास न्यू फाइल बनी हुई थी, लेकिन वो फाइल एम्प्टी होगी. अब मैं क्या करता हूँ कि उस फाइल को जो है डेटा दे दिया, लाइक फाइल हैंडलिंग इज़ माय मिडिल नेम, और फिर मैं कहता हूँ कि मुझे ये फाइल रीड करनी है. तो रीड करने का मैकेनिज्म सेम है, आपको पहले फाइल को जो है वो ओपन करना होगा. अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ इन, क्योंकि अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो रीड कर रहे हैं फाइल को, और फाइल जो है आ रही है हमारे पास बाहर से प्रोग्राम में इन आ रही है, तो मैंने यहाँ पे ये पैरामीटर लगाया है इन. बाकी जो हमारे पास iOS एंड डबल कॉलन है वो कांस्टेंट है. इन का मतलब है कि ये हमारे पास बाहर से इन हो रही है. अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है कैरेक्टर का ch, और मैं यहाँ पे लूप लगा रहा हूँ. वाइल लूप तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कंडीशन जो है, हमें ये नहीं पता कि हमारी जो है कितनी बार जो है प्रोग्राम की आइट्रेशन होगी, हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन नहीं पता, तब हम यूज़ करते हैं वाइल लूप. अब मुझे नहीं पता कि मेरी जो ये फाइल है इसमें कितने कैरेक्टर्स होंगे, लाइक मैंने नहीं देखी वो प्रोग्राम में, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वाइल लूप. यहाँ पे मैंने लिखा है वाइल नॉट, मतलब ये जो कंडीशन है इसका उल्टा फॉल्स. ऑब्जेक्ट डॉट ई ऑफ एफ. अब ई ऑफ एफ का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल. जब तक आपकी जो फाइल है ये ख़त्म नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलेगा. जब तक आपकी फाइल ये एंड ऑफ फाइल ख़त्म नहीं हो जाती, मतलब ये नॉट ख़त्म नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलेगा. अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें मैं ये जो है कैरेक्टर, मतलब ये कर रहा हूँ मैं कि फाइल से अपना जो है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वो डेटा निकाल रहा हूँ और वो मैं सेव कर रहा हूँ ch में, यानी कि जो मेरा वेरिएबल था कैरेक्टर का उसमें. अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, उस वहीं पे लूप के अंदर ही जो है उसको प्रिंट करवा रहा हूँ ch. तो यहाँ पे देखें क्या हो रहा है आउटपुट में, ये जो मेरी फाइल का डेटा था ये आउटपुट में हमारे यहाँ शो हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे एज अ कैरेक्टर ले रहे हैं और कैरेक्टर जो है वो वाइट स्पेस को इग्नोर करेगा. यहाँ पे अगर आपको अलग से कैरेक्टर जो है लाइक वाइट स्पेस भी प्रिंट करना है तो उसके लिए यहाँ पे कुछ और लॉजिक यूज़ होगी, कोई मेथड यूज़ नहीं होगा, आपकी अपनी लॉजिक यूज़ होगी. और इन दी एंड मैंने यहाँ पे क्लोज कर दी फाइल. यहाँ पे क्लोज करना मुझे लाजमी नहीं था, लेकिन मैं ऐसे ही आपको ये रिपीट करवाना चाह रहा था कि ये जो क्लोज वाला हमारे पास मेथड होता है ये क्रूशियल होता है व्हेन यू आर राइटिंग द फाइल. अब हम देखते हैं फाइल पे राइट कैसे करते हैं. राइटिंग इज़ वेरी इजी. रीडिंग में हमारे पास लूप इन्वॉल्व होती है, लेकिन राइटिंग में हमारे पास लूप इन्वॉल्व नहीं है. अगर आपको राइट करना है तो जैसे आप सी आउट करते हैं, सी आउट इंजर्शन ये ब्रैकेट्स और फिर आप लगाते हैं अपना मैसेज, वैसे ही अगर आपको फाइल में कुछ लिखना है तो आप लिखेंगे ये एंगल ब्रैकेट्स और फिर वो मैसेज, तो वो डायरेक्टली आपका जो है फाइल में सेव हो जाएगा, राइट हो जाएगा fstream ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे मैंने आउट लिखा है. अब इस आउट का मतलब है कि यहाँ इस प्रोग्राम से हम टेक्स्ट भेज रहे हैं बाहर वाली फाइल में, तभी मैंने आउट यूज़ किया है. यहाँ पे iOS तो कांस्टेंट है हमारा, यहाँ पे आउट. अब ये मुझे लग रहा है कि आपको जो है ये बात समझ आ रही होगी कि इन और आउट में क्या फ़र्क आ रहा है इस fstream के इस ओपन जो है मेथड उसमें. यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट में लिखा होप यू गॉट द ऊप क्लियर्ड, और फिर ये जो है मतलब इस फाइल में ये मैसेज मेरा एंटर हो गया, लेकिन वो सेव नहीं हुआ. सेव तब होगा जब उस फाइल को हम क्लोज़ करेंगे. हमने फाइल को क्लोज़ किया तो अभी ये मैसेज जाके उसमें स्टोर हो गया. फर्स्ट करें आप ये क्लोज हटा देते हैं तो ये क्या होगा, ये रन तो करेगा, कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन आपकी फाइल एम्प्टी होगी या उसमें पुराना वाला मैसेज पड़ा होगा, नया वाला ओवरराइड नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको सेव ही नहीं किया. सेव तभी होगा जब आप उसको क्लोज़ करेंगे. तो ये थी फाइल हैंडलिंग, और यहाँ पे हमारा जो है ये सेशन आ पहुँचा है एंड पे. अब आपको पता चल गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, फाइल हैंडलिंग क्या होती है, आपके पास पॉइंटर्स क्या होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत सीख ली. लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी मसला आए, कभी भी कोई भी मसला आए, तो हम दोनों भाई आपके हाजिर हैं. हमारी ये मेल है, आप कभी भी हमें रीच कर सकते हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम मी. थैंक यू. Okay, so I had this concern right here
कि before anyone asks questions, I want you all to just fill the feedback form. उसके थ्रू आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और आपको सर्टिफिकेट्स भी आ जाएंगे। ऑल्सो आपको स्लाइड्स भी आएंगी जो मुजम्मिल एंड असद presented today. So I hope you guys fill the feedback form and drop your questions too as well. Also, the feedback form will be up for only 15 minutes. So that's probably the end of the time limit for the feedback form. Don't forget to fill it. Guys, if you have any questions, so write in the chat box. असद, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था अब्दुल अहद की तरफ से कि कीवर्ड्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होते हैं या नहीं। हर लैंग्वेज में अलग कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो कॉमन होते हैं लाइक लूप के लिए, तो वो मतलब सिमिलर होते हैं, लेकिन डिफरेंट होते हैं फॉर एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थैंक यू। Guys, अगर कोई भी सवाल है तो आप लोग अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं और खुद भी पूछ सकते हैं या फिर चैट विंडो में भी लिख सकते हैं। तो स्पीकर्स अभी बैठे हुए हैं, तो अगर आप लोग कोई भी सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल आया है रीमा की तरफ से, व्हाट आर स्टैक एंड क्यू? स्टैक और क्यू हमारे पास जो होते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्टैक में हमारा एक प्रॉपर आर्डर फॉलो होता है और क्यू में हमारा एक अलग जो है प्रॉपर आर्डर फॉलो होता है। ये डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। अब स्टैक में मैं अगर जनरली बताऊं आपको, तो स्टैक में क्या होता है कि आपका जो लास्ट एलिमेंट है वो पहले डिस्प्ले होता है। मतलब आप जो एक लिस्ट बनाती हैं उसमें आप एलिमेंट्स ऐड कर रही हैं लाइक 1 2 3, तो अगर आपको कोई एलिमेंट चाहिए तो वो लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो आपको स्टैक देगी। लेकिन क्यू में ऐसा नहीं होता। क्यू में एक प्रॉपर जो है सीक्वेंस फॉलो होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। दिस इज द क्यू एंड स्टैक फॉर यू। I will just want to add something कि बेसिकली देखें डेटा स्ट्रक्चर्स आप किसी भी लैंग्वेज में इसलिए काम आते हैं कि आपकी जो कुछ टाइप ऑफ डेटा है या कुछ बंच ऑफ डेटा है, आप उसको कैसे मैनेज करना चाहते हैं। उसमें हर डेटा स्ट्रक्चर के जो डेटा के रिट्रीवल के जो तौर तरीका होता है वो भी चेंज होता है। जैसे कि आपने पूछा कि स्टैक एंड क्यू, तो ये दोनों डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। तो इनमें फ़र्क क्या हुआ कि स्टैक जो है वो भी आपकी डेटा जो है वो स्टोर करेगा, लेकिन वो किस फॉर्म में करेगा कि जस्ट लाइक कि आप कोई बुक्स जो हैं वो आप अपनी टेबल्स में अगर रख रहे हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। और अगर आपको वो उठाने हैं तो वो आप डायरेक्टली जो है नीचे वाला नहीं उठा सकते। आपके आपसे आप जो है आपकी उस डेटा को जो है वो डिस्टर्ब कर देंगे। तो आप उसको एफिशिएंटली उठाने के लिए जो है आप पहले वो वाला बुक उठाएंगे जो आपने लास्ट में रखा हो। तो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक कि जो डेटा आपने जो इनपुट आपने स्टैक में लास्ट में डाला होगा वो आप पहले एक्सेस कर पाएंगे, और जो आपने पहले डाला होगा वो आप सबसे लास्ट में एक्सेस कर पाएंगे। और क्यू जो कि आप नाम से ही डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी क्यू जो है वो आपके पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि आपकी डेटा को
दोनों साइड फॉरवर्ड और प्रीवियस जो है वो आपको एक्सेस करने की एक फीचर जो है वो फराहम करता है। और उसमें जो है पहले जो आपका जनरली जो भी डाटा एडेड होगा वो आपका पहले ही निकलेगा। यहाँ पे जो अप्रोच जो फॉलो होती है वो आपकी होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस की, और स्टैक में जो होती है वो होती है फर्स्ट कम लास्ट सर्व। तो ये बेसिकली सिंपल सीन होता है सेकंड क्यू का। आई होप इट हेल्प। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इम्प्लीमेंट टाइप्स ऑफ स्टैक। तो हमारे पास जो है मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ देयर आर 2 मेन टाइप्स, वाया एरेज एंड वाया लिंक्ड लिस्ट। How many data structures are there in C++? There are many data structures. We have arrays, linked lists, stack, queues, trees, map, graphs, hash. There are many. ओके, देयर वाज अनदर क्वेश्चन, जिससे इनहेरिट होता है क्लास उसको ड्राइव्ड क्लास कहते हैं। जी, जो हमारे पास इनहेरिट हो रही है, मतलब जो सेकंड क्लास है हमारी, जो किसी ना किसी क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो उस क्लास को हम डिराइव्ड क्लास कहेंगे। लेकिन जिससे वो हो रही है उसको हम बेस क्लास या पेरेंट क्लास कहेंगे। And yeah, what is hashing, Sheikh Anas? So basically, hashing is just converting your raw data, simple like alphabetical alphanumeric data into a form which is not understandable by human, or not understandable or not human readable. तो बेसिकली आपका हैश किसी भी चीज़ का, किसी भी मैसेज का, किसी भी स्ट्रिंग का जो हैश होता है वो आपको उसके कुछ बैकएंड पे कुछ मेथड्स होते हैं जिससे वो उसका एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग जो है वो आपको जनरेट करके देता है, जिससे आपको जो है उस स्ट्रिंग की जो एक्चुअल वैल्यू है वो निकालना मुश्किल हो जाती है। तो बेसिकली ये आपका जो है वो इंक्रिप्शन या सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए ही यूज़ होता है। अच्छा, वी हैव क्वेश्चन व्हाई वी लर्न फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम जो है वो हमारा पुराना डेटाबेस है, पुराना, बहुत पुराना डेटाबेस है। पहले फाइल सिस्टम होता था, डेटाबेस जो है वो अभी वाला सिस्टम है हमारे पास। तो फाइल सिस्टम अभी यूज़ होता है कहीं कहीं पे। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। फाइल सिस्टम आप जो है वर्ड फाइल में जब अंडू करते हैं और उसको जो है रीडू करते हैं, तो यहाँ पे तो आपका कोई डेटाबेस नहीं है ना, तो यहाँ पे आपके सिस्टम में ही फाइल सेव हो रही हैं। तो ये आपका होता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। या और मेन पर्पस ये था कि पहले जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुई थी तो पहले हमारे पास डेटाबेस सीक्वल डेटाबेस या नो सीक्वल डेटाबेस जो थे वो अभी इतने पॉपुलर या नहीं थे। तो उसमें जो बेसिक हमारी डेटा स्टोरेज की या डेटा मैनेजमेंट के का जो वे था वो यूज़ होता था, वो हमारे पास फाइल हैंडलिंग का था, जो कि हमें प्रोवाइड करता था कि हम परमानेंटली किसी भी डेटा को सेव करें और उसे रिट्रीव कर सकें। तो दैट वाज बेसिकली द मैटर। Yeah, so then there is Abdul Basit. So what is encapsulation? Okay. So as Asad already discussed about encapsulation, that encapsulation हम अपने प्रोग्राम्स में, अपने क्लासेस में इस हवाले से फराहम करते हैं कि आगे जब हम उन क्लासेस की इम्प्लीमेंटेशन करें या आगे हम जब उन क्लासेस को यूज़ करें, तो जो पर्टिकुलर एंटिटी या जो चीज़ें उस क्लास को एक्सेस कर रही हैं, उनको क्लास के बेसिक्स का या उस क्लास के बेसिक जो वेरिएबल्स हैं उन चीज़ का जो है वो पता ना चले। उनको ये इन्फॉर्मेशन ना हो कि हमारे यहाँ पे कौन से वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं या कौन सा जो है वो टाइप का डेटा हो रहा है। इसीलिए हम उनको जो है उन वेरिएबल्स को अपने क्लास में प्राइवेट रख के और एक मेथड जो है वो उनको पब्लिक कर देते हैं कि जो भी बाहर वाली जो चीज़ें हैं जो कि हमारी क्लास को यूज़ कर रही हैं वो सिर्फ उन मेथड्स को कॉल कर सकें, ना कि उन बेस वेरिएबल्स को जो कि हमारे क्लास का हिस्सा हैं या क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं। तो बेसिक जो इनकैप्सुलेशन का जो मकसद होता है वो यही होता है कि जो एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं उनसे हमारी अपनी जो पर्सनल क्लास की जो एट्रीब्यूट्स हैं या वेरिएबल्स हैं उनको छुपाना या उनसे दूर रखना। Kirat, you raised your hand. Do you have any? Kirat, देयर इज़ अ क्वेश्चन, प्राइवेट मेंबर्स को हम मेन क्लास में जो है एक्सेस करते हैं या नहीं। सी, जिस क्लास में आपने प्राइवेट मेंबर्स बनाए हैं तो उसी क्लास में आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस स्कोप से बाहर जा रहे हैं, लाइक मेन मेथड में जा रहे हैं, तो जो मेन मेथड है वो हमारी C++ में किसी क्लास में नहीं होता,
वो गेटवे ऑफ प्रोग्राम होता है वो अलग होता है क्लास से, तो वहाँ पे आप जो है प्राइवेट मेंबर्स एक्सेस नहीं कर सकते। Yeah. So share actually, as much as I know, I don't. Asad and I are not familiar with virtual function and parent function, so that would be suitable if you could Google for it. Yeah, we have what are similarities between a class and a structure. So these both are similar, but we use both of these at different places. अब स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रक्चर में एक कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता। लाइक अगर आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है स्ट्रक्चर में, तो नाम तो आप सेम दोगे लेकिन उसको खाली नहीं छोड़ सकते आप उसको लाजमी कोई ना कोई पैरामीटर्स दोगे। लेकिन क्लास में आप एक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं विदाउट एनी पैरामीटर्स। एक हमारे पास ये डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर का और एक क्लास का। Okay, then Rima asked that how I call private variables in inherited class. So basically देखें कि private variables जो जब भी हम अपनी क्लास में डिफाइन करते हैं तो हम वहाँ पे एक सपोर्टिंग मेथड जो है वो भी हम डिफाइन ज़रूर ही करते हैं कि बाहर जब भी हम अपनी क्लास को एक्सेस करें तो वो मेथड्स हमें उन वेरिएबल्स को एक्सेस करने में हेल्प करें। तो जब भी हम कोई प्राइवेट वेरिएबल लाइक इंट नेम और सॉरी स्ट्रिंग नेम अगर हम डिफाइन कर रहे हैं अपनी क्लास में, तो हमारे उसी क्लास में हम एक दो मेथड्स भी डिफाइन करेंगे। एक होगा सेट नेम और एक होगा आपका गेट नेम, जो कि आपको किसी भी इनहेरिटेड क्लास में आपके उस नेम को मॉडिफाई करने में, नेम को सेट करने में या किसी भी ऑब्जेक्ट के नेम को गेट करने में मदद करेंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन कॉल और इन्वोक प्राइवेट वेरिएबल्स थ्रू एनी इनहेरिटेड क्लास। These are basically called as mutator or and accessors, I think. Yeah, you can use a friend function. Friend keyword will allow the other class to use the private members of a class. बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम क्लास में कुछ भी लिखेंगे तो वो प्राइवेट ही होगा C++ में। अगर आपको पब्लिक करना है तो आपको कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा पब्लिक, व्हिच इज़ एक्सेस स्पेसिफायर और फिर फॉलोड बाय अ कॉलन। या हाँ, पब्लिक एंड जो है प्राइवेट वो आप ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट होते हैं। Thank you for the appreciation, Farhana. We appreciate that. Is there any other questions left? So guys, please पूछ लें, अभी speakers बैठे हैं फिर से। Okay, I think there is no more questions. Then we are ending the session. Thank you so much for a wonderful session on OOP, Asad and Muzammil. Now I'm sure our audience won't have any more OOP. On that note, thank you so much and dear audience, and thank you so much Muzammil and Asad. Allah Hafiz. It was very nice session. Allah Hafiz everybody and best of luck. Same here, guys. Best of luck for your future learning and endeavors. And thank you so much for hostess for providing us opportunity to provide a wonderful this wonderful session. So overall credit goes to you. So everyone, thank you so much, and Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.